you to day 5 of TMV Cinefest, the film festival of Tilak Maharashtra Vidyapith. Over the last few days, TMV Cinefest has celebrated cinema in its many forms, through films, discussions, and learning experiences. Today, we take another exciting step forward as we explore a creative field that blends imagination, technology, and storytelling, the art of animation. It gives us great pleasure to welcome our guest for today's session, Hemant Shinde sir. Hemant Shinde sir is a professional animator who has worked closely with the creative process of animation from ideas and visuals to movement and storytelling. With his practical experience in animation, Sir understands how stories can be brought to life frame by frame. Today's session explore the art of animation. Will give us valuable insights into animation as an art form, a career option, and a powerful medium of expression. This session will be especially inspiring for students interested in visual storytelling, design, filmmaking, and digital media. To honor our guest speaker, I request Debauti ma'am to kindly come on stage and felicitate Hemant Shinde sir. Thank you ma'am. With this, I now दे देता हूँ myself हेमंत शिंदे. These are the brands, if you know, Cartoon Network, Google, Warner Brothers, Universal, Volkswagen. These are the brands I have worked in last 20-25 years. I have served. I was with Maya. It was a very kind of a old studio in India. In the beginning, there were like very few studios in India in animation. So I used to work for their international division. That's the reason मैं ये international सब brands को serve करता था. In the films, Sons of Ram, Tonpur का super hero, Noddy, Ramayana the Epic. In the visual effects, I restored the Sholay. I don't know, you guys know the 75th, 75 का film Sholay, because old लोगों को तो पता रहेगा. But I was the one of the main project director of that film. So जो अभी जो आपका स्टार गोल्ड पे जो आप शोले देख रहे हो यंग जनरेशन के लिए जो पुराना था, that new restored version is done by me. So that was in live action. In animation, I am known for Motu Patlu because it's my one of the brainchild. Brainchild in the sense we started when we started in 2009. तो restarted in Maya. तो हमारे पास में कुछ projects नहीं थे. तो क्या करना चाहिए? तो we thought कि let's, because 80s में मोटू पतलू एक कॉमिक आता था. तो we thought कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी के पास में हमको सैलरी देने के लिए ये नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ ट्रांजिशन काइंड ऑफ अ पीरियड. 2000 से भले हम लोग कर रहे थे, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडस्ट्री गॉट लाइक अप्स एंड डाउन. सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ डाउन, और डाउनफॉल में हमने ये आईपी क्रिएट किए थे. तो अभी जब ये स्टडी किया तो एक चांस मिला उस टाइम में स्ट्रगल करने का कि आईपी कैसे, ये एनिमेशन की सीरीज कैसे बनती है, उसका रेसिपी क्या है. सो द बेस्ट पार्ट वाज लाइक आई वाज एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेवल था, तो मुझे वो सब काम करने के लिए मौका मिल गया. बिकॉज आई विल शो यू अभी द एनिमेशन प्रोसेस, एक एनिमेशन आईपी कैसे बनती है, एनिमेशन सीरीज कैसे बनती है. लेटर ऑन आई विल शो यू द उसका प्रोसेस कंप्लीटली, और उसके बाद में आई विल कम ऑन अ कंक्लूजन कि एनिमेशन पहले के ज़माने में किस पर्सपेक्टिव में देखा जाता था, कौन कौन एनिमेशन को एनिमेशन में इंडस्ट्री में करियर कर सकता है, और आज के दिन में यानी आफ्टर पैंडेमिक एनिमेशन कितनी इंडस्ट्रीज के लिए खुल गया है. सो आई गिव यू ऑल द आंसर्स मे बी, और उसके बाद में हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे वेयर यू कैन जस्ट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, बिकॉज ऑल द मीडियम आई हैव वर्कड इन दिस लास्ट 25 years. ठीक है. तो एनिमेशन का प्रोसेस, मोटू पतलू का रेसिपी मुझे पता था, तो दैट्स द रीज़न जो राइटर भी मैंने हायर किया था, ही वॉज अ एक्स आर्मी, इंडियन आर्मी. दैट्स द रीज़न वो डिसिप्लिन है, नॉन सेक्शुअल, नॉन वायलेंट, नो लव अफेयर. ये रेसिपी है. मोटू पतलू फेमस क्यों हुआ बच्चों के लिए, पेरेंटल, बिकॉज
As an animation artist, if I'm an animator, so I have a responsibility. I'm not working for films or media or ad agency जो एक adult group को serve करता है. I'm working for kids और वो kids है. मैं जो भी एनिमेशन बनाता हूँ इसका कोई भी रिसर्च डेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है. लोग बोलते रहेंगे कि बच्चों को क्या, रेंगते हुए बच्चों को क्या चाहिए कोई भी बता नहीं सकता, बिकॉज इवन ही कांट टेल यू. गेटिंग माई पॉइंट. फिल्में वायलेंट फिल्म बनाओ, माराधाड़ी वाली फिल्म बनाओ, रोमांटिक फिल्म बनाओ, उसका रिसर्च डेटा आपको मिल सकता है, कोई आपको रिव्यूज दे सकता है. बट बच्चों के लिए आप अगर कंटेंट बनाओ, यू हैव टू बी, यू आर एन आर्टिस्ट बट यू हैव टू बी सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज आप उनको सर्व करने वाले हो. तो आपको बहुत सारी चीज़ें, साइकोलॉजी, उनकी रिसर्च जो भी है, दैट कम्स ऑटोमेटिक ऑब्वियसली विद द एक्सपीरियंस. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्रिएटिंग एनी एनिमेशन फॉर किड्स, बिकॉज आपको वो बता नहीं सकते कि मुझे पसंद क्या है. मैं आज भी जाता हूँ, ये मैं कैसे ये कर सकता हूँ, बिकॉज आई गो टू मॉल्स, तो मैं ज़ारा H&M में नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ हैमलेस में, कि बच्चों को क्या कौन सा फॉन्ट्स पसंद है, कौन से कलर्स पसंद है. सो एनिमेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर. रिसर्च आपको खुद को ही करना है, बिकॉज आप किसी भी बच्चे को नहीं पूछ सकते कि तेरे को पसंद क्या है. लोग बोलते हैं कि नहीं, लोगों को छोटा भीम ही पसंद है, नहीं लोगों को एनिमी ही पसंद है, बट ये अपने यहाँ पे कल्चर, ये कल्चर नहीं है. वाई मोटू पतलू इज फेमस? बिकॉज इट हैज़ अ कल्चरल वैल्यू, इट हैज़ सम इंस्पिरेशनल, देयर इज नो लव अफेयर. बहुत सारी चीज़ें हमने वो टाइम पे ही वी डिसाइडेड कि कुछ एथिक्स रखने बच्चों को चाहिए. तो इट हैज़ टू बी पेरेंटल कंट्रोल्ड ऑल्सो, एंड इट हैज़ टू बी किड्स के लिए भी सेफ होना चाहिए. बिकॉज हम जब बनाते, आज के तारीख में मैं देख रहा हूँ एनिमेशन में बहुत सारा वेरी फ्यू एनिमेशन IPs और सीरीज देखने के लिए आज के तारीख में थोड़ा सा वी आर लैगिंग. एंड दैट्स द रीजन हम लोग भी, मेरे जैसे लोग भी सेमिनार ले रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ताकि आप कल उठ के अच्छा कुछ एनिमेशन बनाओ, बिकॉज दिस एनिमेशन इज स्टिल रिक्वायर्ड. लोग वो जापान, अभी आज के तरह में कोई बना नहीं रहा है, तो जापान कोरिया से लाके डब करके दे आर क्रिएटिंग, दे आर हैमरिंग. सो एनिमी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी अदर एनिमेशन, आई एम जस्ट सेइंग कुछ भी एनिमी, आप 2D एनिमेशन करो, 3D एनिमेशन करो, एनिमी करो, जो भी करो, बट इट इज फॉर किड्स ना. तो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम अ गुड. किड्स शुड नॉट बिकम अग्रेसिव वाइल, बिकॉज एनिमेशन एक ओनली मीडियम है. आप फिल्में देखते हो, सीरीज देखते हो, सीरियल, सास बहू की सीरियल देखते हो, तो आपको एक कोई पर्टिकुलर इससे पता है कि हाँ इससे आगे कहानी बढ़ रही है. फिल्मों में आप बीच में से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा अरे स्टार्टिंग में हुआ क्या और एंड में क्या होगा. ये फिल्में और सीरियल्स के लिए अप्लीकेबल होता है, बट बच्चों के लिए वो सब ये अप्लीकेबल नहीं होता. बच्चे कहीं से भी कार्टून देखना शुरू कर सकते हैं, एंड दे गॉट एंगेज. द ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक एनी एनिमेशन कंटेंट विच विल बी एंगेजिंग टू देम, कि कुछ अच्छा हो रहा है, थोड़ा क्यूट है, एकदम हंसी है, कॉमेडी है, कॉमिक है. अभी मुझे समोसा पसंद था तो मैंने वो डाल दिया मोटू के इसमें, बिना खाए नहीं दिमाग चलता. तो वो दीज आर माई आइडियाज. हम लोग का जो डे टू डे लाइफ का हमने पूरा उसके अंदर रेसिपी डाल दिया था. दैट्स वाई पीपल गॉट कनेक्टेड, कि कनेक्शन हो जाता है कि अरे यार मुझे भी अच्छा लगता है. हमें जब भी हमने स्टार्टिंग में भी हमने किया था, तो हमें बोला गया था कि अरे बच्चों के लिए बना रहे हो, तो वो मोटू और पतलू का तो एज है 40, तो उनको छोटा करो. मैं बोला कि आप क्यों डिसाइड करते हो, लेट किड्स वॉच ना, उनको देखने दो, वो लोग डिसाइड करेंगे. आज हो गया ना सक्सेसफुल, अभी चाचा भतीजा बनाने लगे, फिर अभी ये बनाने लगे. अभी नाव दे नाव कि अरे हेमंत बरोबर बोलता था कि अरे दिखाओ तो सही, आप दिखाओगे नहीं, व्हाई यू आर डिसाइडिंग. सो एज एन एनिमेटर, एज एन एनिमेशन आर्टिस्ट, दीज आर द काइंड ऑफ बेसिक रूल्स, एंड ये सब मैंने आपको बता दिया. अभी नाउ आई विल टेल यू द प्रोसेस ऑफ एनिमेशन. ये हम लोग एनिमेशन प्रोसेस कैसे करते हैं. सी आई एम नॉट सेइंग मी टिळक विद्यापीठामध्ये, पण आय एम अ कॉलेज ड्रॉपआउट, कॉमर्स ड्रॉपआउट, बट दिस इज लाइक आई हैव स्टडीड. आई रिग्रेट कि मैंने वो स्टडी कंप्लीट करना चाहिए था, बट एवरी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. So commerce or arts or science, everything, because even engineering, software engineering, everything is required for the animation. I will tell you how. Means because मैंने almost 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा रिक्रूटमेंट की है आज तक. तो मैं साइंस के बंदे को भी बोलता हूँ, अगर इफ़ यू आर डूइंग साइंस ना, बिकॉज इन एनिमेशन साइंस इज रिक्वायर्ड.
software engineering is required, architectural is required, anything I will come to know, I'll tell you later with this process. आपको तभी पता चल जाएगा. So these are the animation production pipeline. So there are these many departments are म्हणजे एक एनिमेशन कोई एक बंदा नहीं करता, उसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स. इट्स लाइक अ फैक्ट्री. एक फैक्ट्री में आते तो एक कार बनती है तो अलग अलग उसके पार्ट्स आते हैं, उसका असेंबलिंग एंड फाइनल आउटपुट जाता है ना, वैसा. ठीक है. बीइंग अ मेल मैं कार वार के ये दे सकता हूँ, मुझे वो लड़कियों का ये नहीं आएगा एग्जाम्पल देना, सॉरी. तो ये डिपार्टमेंट्स हैं. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना जो हम लोग सोचते हैं मोटू पतलू बनाना है ना, तो देर आर डिपार्टमेंट्स कॉल्ड प्री प्रोडक्शन, प्री विजुअलाइजेशन. आपको पहले ही सोचना पड़ता है कि करना क्या है ना, तो दैट्स अ प्री विजुअलाइजेशन. कोई भी विजुअलाइजेशन आने से पहले एक प्री विजुअलाइजेशन. सो देर आर प्री विजुअलाइजेशन यानी आपके कॉन्सेप्ट आर्ट, स्टोरी लिखना, राइटर्स, स्टोरी नरेट करना, स्क्रिप्ट लिखने वाले, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट यानी जो कैरेक्टर को इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए. अभी ये मोटू और पतलू हो गया, बट एक इंस्पेक्टर चिंगम भी होना चाहिए, बट वो भले वो सीना चौड़ा वाला नहीं, एकदम काड़ी होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट. सो दे डिज़ाइन, उनसे हम लोगों को करा के लेते हैं. सो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो खाली कॉन्सेप्ट का यानी कैरेक्टर के नहीं, हम लोग को बैकग्राउंड्स, सिटीज़ वो भी डिज़ाइन करनी पड़ती है. अभी उसमें हम लोग एक हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्शन वाला था जो एकदम थुल्ला निठुल्ला, तो उसको हम लोग फुरफुरी बोलते थे. अबे फुरफुरी यानी कुछ करता ही नहीं था, उसी का नाम हमने उस सिटी को दे दिया, फुरफुरी नगरिया. सो दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन और ये सब उसमें आ जाता है कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में हमारे जो कॉमिक जो करते हैं ना, उसी को आप उसके अंदर आप देखते हो. आई सी मेनी कैरेक्टर्स ऑफ माई फ्रेंड्स इन दैट सीरीज. आप लोगों को पता भी नहीं रहेगा, अच्छा हाँ ये सर आपका वो दोस्त है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है, फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग दिस डिपार्टमेंट्स आर. देन स्टोरी बोर्ड अगेन, आर्टिस्ट, एनिमेटिक्स, जो आई शो यू कि ये एनिमेटिक्स ये क्या होता है ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. वैसे कलर की, मूड बोर्ड, लाइटिंग रेफरेंस की वो लुक कैसा होना चाहिए. लाइक अभी हमें बोला गया था कि अरे इसको थोड़ा सा ड्रीम वर्क स्टाइल बनाओ ना, तो हमारा कंसर्न था कि बस एनिमेशन इज एक्सपेंसिव प्रोसेस. ज़रूरत क्या है, बच्चों ने मांगा है क्या कि मुझे कुंफू पांडा या ड्रीम वर्क्स कार्स क्यों बनाना है, ज़रूरत नहीं है. मेरा खाली कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ किड्स. सबको वो नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है. तो ये जो कलर्स और वो सब बनाने वाले, डिसाइड करने वाले, दीज आर दी कलर की एंड मूड बोर्ड, दीज आर प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट हम लोग उनको बोलते हैं. जो आपको इनका बैकग्राउंड जनरली फाइन आर्ट या आर्टिस्टिक, जो हम लोग जनरली भी ऐसा नॉट नेसेसरी कि फाइन आर्ट बैकग्राउंड के ही होना चाहिए. जिसका स्केचिंग अच्छा है, जिसका ड्राइंग अच्छा है, जिसका विजुअलाइजेशन अच्छा है, दिस कैन वर्क इन दिस डिपार्टमेंट. उसके बाद में ये आ जाता है, नीचे चले जाता है 3D एनिमेशन, जो प्रोसेस है एनिमेशन के. मोटू पतलू का मॉडल बनाओ, 3D मॉडल बनाओ, उसके बैकग्राउंड्स बनाओ. तो दीज आर इसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, एनिमेशन का पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो ये अलग अलग 1 2 3 4 है ना, दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल टुगेदर. एक मॉडल बनाने वाला, जैसा एक स्कल्पचरिस्ट, वो अलग रहता है जिसने गणपति की मूर्ति बनाई ग्रे में. फिर उसको पेंटिंग करने वाले, टेक्सचरिंग, शेडिंग, हेयर फॉर, वो आर्टिस्ट अलग होते हैं कि वो जो कलर पेंटिंग वो लोग अलग करते हैं, जिनका टेक्सचरिंग सेंस अच्छा रहता है, जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता है, फॉर एग्जांपल. ठीक है. उसके बाद में रिगिंग. अभी रिगिंग इज द सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट. इसके लिए हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं साइंस बैकग्राउंड, बिकॉज ह्यूमन एनाटॉमी है ना. मोटू पतलू भी तो कैरेक्टर है ना, उनके भी तो हाथ मुड़ेंगे, उनका भी तो कमर मुड़ेगा या स्ट्रेच होगा, स्क्वैश होगा. सो ह्यूमन एनाटॉमी जो स्टडी है, जिसको बोन स्ट्रक्चर क्या है, सो समझ रहे हो कि साइंस बैकग्राउंड भी लोगों को लगता है मुझे साइंस 90% 80% जो भी है मुझे डॉक्टर ही बनना है. सी डॉक्टर बन सकते हो, दिस इज द वो एक अच्छा, बट इवन वी नीड एज एन एनिमेशन इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स दिस काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स. और वहां पे है कि बस आप लोग जा सकते हो, बिकॉज अगर अभी ये हमने ही एनिमेशन आर्टिस्ट को तब से जो भी रिगर्स और वो सब थे तो उनको ट्रेन किया कि आप स्टडी करो ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है, कैसा होता है, बोन स्ट्रक्चर क्या होता है. दीज आर ऑल रिक्वायर्ड इन द एनिमेशन.
सो रिगिंग ये डिपार्टमेंट है, कैमरा स्टेजिंग, ब्लॉकिंग, इट्स अ यानी किसी को सिनेमाटोग्राफी करना है, किसी को ये करना है जो फोटोग्राफी में अच्छा माहिर है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट। कैमरा स्टेजिंग जहाँ पे हम लोग भी किड्स के लिए भी कैमरा लगता है ना, वो सीरीज में भी कैमरा और ऑपरेशन और सब ये सब प्रोसेस है। सो कैमरा, एनिमेशन, एनिमेटर, इट्स लाइक अगेन मेन, अभी बोलते हैं ना कि आई एम नॉट अ एनिमेटर, आई एम अ डिजिटल आर्टिस्ट, बट आज के तारीख में लोगों को सिर्फ ऐसा, अभी आपको ये पूरा इसमें पता चलेगा कि ये मुझे बोला गया कि आई एम एन एनिमेटर, आई एम नॉट एन एनिमेटर, आई एम अ डिजिटल आर्टिस्ट, आई डू ऑल दिस थिंग्स। एनिमेटर सिर्फ इसमें आता है, 10th वाला इसमें, जो एनिमेशन करता है, जो जिसको सिर्फ उसको दौड़ना कैसा होता है, जंप कैसे करना, दैट्स कॉल्ड एनिमेटर। बट आज के तारीख में बिकॉज ऑफ लोगों को पता नहीं ना, तो हम लोग को सब लोग बोलते हैं अच्छा हाँ ये एनिमेटर है। तो आई एम नॉट एनिमेटर, आई एम अ डिजिटल आर्टिस्ट, बट डिजिटल आर्टिस्ट। आई नो एवरीथिंग, आई कैन राइट, आई कैन डू स्टोरी बोर्डिंग, कॉन्सेप्ट आर्ट, एवरीथिंग आई कैन डू। सो ये एनिमेशन डिपार्टमेंट, जिनको टाइमिंग का सेंस पता होता है, जिसमें ये यहाँ पे बहुत अच्छा, एक्चुअली इसमें ना आपका मैथ्स अच्छा है ना, लोगों को वही समझ में जाता है कि एनिमेशन में मैथ्स का जरूरत क्या है। मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन है, सेकंड्स है, यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे कितने सेकंड्स लगने वाले हैं, तो मेरे एनिमेशन में मुझे क्या क्या पोज में एनिमेशन करना है, एक यहाँ से यहाँ हाथ लाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने फ्रेम्स लगते हैं। सी मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं था, बट मुझे जब भी वो अप्लाई करना कहाँ पे अच्छा समझ में आने लगा ना, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग मैथ्स। कैलकुलेशन आज अच्छा करता हूँ, मेरा टाइमिंग सेंस और एस्थेटिक सेंस अच्छा हो गया उसकी वजह से। एंड सिंपल मैथ्स, मुझे साइन कॉस थीटा नहीं करना है कि इसका रूट निकालो, इसका ये इसको नहीं, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो एनिमेशन में भी एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी बोलता हूँ ना कि अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन किया है, साइंस ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्टिल कम इनटू दिस प्रोफेशन। एफएक्स सिमुलेशन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट और चैलेंजिंग। इनको हम लोग ना टेक्निकल एनिमेटर्स या टेक्निकल आर्टिस्ट बोलते हैं, बिकॉज एफएक्स सिमुलेशन डायनामिक्स यू कांट इवन जो मिल्क प्रोडक्ट आप देखते हो और ये सब देखते हो ना, जो सीजीआई रहता है, सो उसमें ग्रेविटी और वो सब कितना होना चाहिए, या एफएक्स सिमुलेशन इज अगर कुछ ब्लास्ट हो रहा है तो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, इट्स वेरी माइनर, इंटरेस्टिंग है। दोज आर्टिस्ट आर लाइक, ये एफएक्स डायनामिक सिमुलेशन आर्टिस्ट के पास बहुत सारा पेशेंस लेवल होना जरूरी है, बिकॉज मशीन्स आर अपना, मशीन्स के सुपर कंप्यूटर नहीं है। उनको ये करने के बाद आपने एक सिमुलेशन डाल दिया, एक वाटर सिमुलेशन, या आप फ्लो कर दिया कि एक वाटरफॉल हो रहा है, तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए, उसका ग्रेविटी कैसे ये होना चाहिए। सो दीज आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो ही हैव टू वेट, क्लिक करो, बैठो 1-2 घंटा, फिर उसके बाद में उसको रिजल्ट्स मिलेगा। सो इट्स वेरी पेशेंस वाला डिपार्टमेंट। एंड एट द एंड, यानी एनिमेशन करने के लिए एक बंदा, आपको बता दूं, दिन का 4 से 5 सेकंड का काम करता है, सिर्फ एक एनिमेटर। अगर मोटू का एक एनिमेशन है ना, 4 से 5 सेकंड का ही एनिमेशन वो दिन भर कर सकता है। आप लोग जो ड्रीम वर्क्स और वो इसमें देखते हैं ना, तो वो हफ्ते में 1 सेकंड का काम करते हैं। 1 second is 25 frames, 24 frames. So that kind of a detailed, and that's the reason उनका एनिमेशन एकदम डिटेल्ड रहता है। और मोटू पतलू के जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो 5-6 सेकंड का एनिमेशन, तो वैसा ही ये लोग 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 5 सेकंड का, 10 सेकंड का शॉट बनाते हैं, जो आप लोग देख के अरे वाह इट लुक्स नाइस। कुछ वाटर सिमुलेशन है, कुछ ब्लास्ट है, कुछ अलग अलग ये है। सो डायनामिक्स बोलते हैं हम लोग। क्लॉथ सिमुलेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने टैंगल देखा रहेगा मूवी, द हेयर, दैट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट ऑन द मदर अर्थ, बिकॉज हेयर सिमुलेशन वो करना, इट्स रिक्वायर्ड बहुत कैलकुलेशन, टाइमिंग, वो आर्टिस्ट को क्रिएटिव भी होना है और कैलकुलेशन और भी करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी ऐसे नहीं है कि वो ये मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, जो हमने जो स्कूल में सीखे थे ना, प्लस माइनस वही है, खाली आपको टाइमिंग और वो सब ये करना पड़ेगा, एंड दैट कम्स ऑटोमेटिकली विद द रिसर्च।
समझ रहे हो? सो दिस इज काइंड ऑफ ये लाइटिंग इज लाइक जो लाइटिंग करते हैं लोग, फोटोग्राफी जिनको पसंद है, जो लाइट कर सकते हैं, सीन है ये एक ही स्पॉट मेरे पे आना चाहिए, ये वाला थोड़ा डार्क होना चाहिए सो दैट मेरे पे, सो दिस इज काइंड ऑफ अगेन इट्स ऑल्सो टेक्निकल क्रिएटिव रेंडरिंग। एनिमेशन में सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है रेंडरिंग। रेंडरिंग इज लाइक आपने एनिमेशन कर दिया, मैं आपको दिखा दूंगा अलग अलग प्रोसेस वो क्या क्या होता है तो आपको पता चल जाएगा। कॉम्पोजिटिंग एंड एडिटिंग यानी रेंडरिंग और कॉम्पोजिटिंग में आपको बताता हूँ, लाइटिंग करने के बाद में सिंपल वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना तो कार बन गई, कार को ना डायरेक्टली हम लोग जापान में अगर फॉर एग्जांपल है जर्मनी में कार बन गई ना तो वो इंडिया में डायरेक्टली पुर्जे या उधर असेंबल करके यहाँ पे नहीं लाते। वो क्या करते हैं कि पहले उसको डिसेबल करते हैं, शिप में डालते हैं, शिप जो जर्मनी से यहाँ पे आया ना दैट्स कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग। फिर शिप से यहाँ पे उतरते हैं और उसको वापस से असेंबल करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉम्पोजिटिंग। कॉम्पोजिट करते हैं और इंडियन मार्केट में वो लोग, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिंपल, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना तो ये प्रोसेस है। सो दीज आर, ये इतना सारा प्रोसेस के बाद में आप एक मोटू पतलू का एपिसोड देखते हो। सो दीज आर काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो प्रोसेस से जाने के बाद में आप एक एपिसोड, अच्छा उसके बाद में भी 11 मिनट का ही एपिसोड होता है। दैट्स बिकॉज एक बच्चे का साइकोलॉजी है, हमारे बच्चे एनीवेज 22 मिनट का ही सास भी के भी बहुत ही और वो सब नहीं देख सकते, उनका उतना अटेंशन लेवल नहीं रहता। उनका 11 मिनट 3 मिनट 4 मिनट स्निपेट्स, वो छोटा छोटा ही उनका टाइम स्पैन रहता है। सो वो सब सोच के ही हमें उनके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है। तो ये इतना डिपार्टमेंट में जाने के बाद में 11 मिनट का ही एपिसोड बनता है। एनीवेज जब हमने स्टार्ट किया तो स्ट्रगल किया था, तो इट वाज लाइक फ्रॉम 1 वी हैव ऑलमोस्ट डिलीवर्ड टिल टुडे 1500 ऑफ एपिसोड्स 11 मिनट के, और तकरीबन 24-25 मूवीज। इतना कंटेंट लिखना बच्चों के लिए कि क्या होना चाहिए, समटाइम इट्स गेट लाइक डिस्ट्रैक्टिंग, बट मज़ा क्या आता है कि डे टू डे लाइफ में आप जितना घूमोगे लोगों को देखोगे ना तो उतना आपको अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं और उनको डाल के एक एपिसोड बनाते जाते हैं। इट इज़ लाइक अभी भी आज भी अगर राइटर थोड़ा मोनोटोनस हो गया तो मुझे जस्ट कॉल कर लेता है कि क्या कर रहे हो सर। अच्छा मैं तो इधर जा रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सा कुछ उनको मिल जाता है, मेरे से 1-2 जोक मिल गया, सर मिल गया, आज का एपिसोड मिल गया, चलो बाय। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोसेस इन एनिमेशन हैपेंस, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग एक कुछ हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो अभी टू बिगिन विद जो कॉन्सेप्ट आर्ट और वो सब बताया ना, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्ट, तो दिस आर लाइक 2D मॉडल शीट्स हम लोग उनको बोलते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ फ्रंट बैक ये सब करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक लाइव एक्शन में जैसा होता है ना, तो ये भी इसमें भी करना पड़ता है। इसमें भी आपका फ्रंट कैसा दिखेगा, राइट में कैसा दिखेगा, 2D में बेसिकली आपको वो विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। देन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन शीट, जो गुस्सा है, स्माइल कर रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ स्टेजेस हम लोग को ड्रॉ करनी पड़ती है। वो कैरेक्टर अगर एकदम गुस्सा है तो कितना उसका ये जा सकता है, उसकी आंखें कितनी जा सकती है। सो ये एक्सप्रेशन बोर्ड पहले ही डिसाइड करने पड़ते हैं। फिर उनका कैरेक्टर डिजाइनिंग कि उनके कॉस्ट्यूम कैसे रहेंगे, ड्रेसिंग कैसे रहेगा, नॉर्मल कैसा रहेगा, और एक सुपर हीरो का अगर बना रहे तो वो उसके कॉस्ट्यूम कैसा रहेगा, बट 2D में कि कलर पैलेट्स और वो कैसे दिख रहा है, क्या है। कैरेक्टर का भी स्केल गाइड होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, बिकॉज ये तो हम लोग तो फीट्स में 6 फीट 5 फीट, तो इनका भी एक कितने फीट में तो उनको मीटर में कैलकुलेशन करना पड़ता है। सेम इन एनिमेशन ऑल्सो। सो अगेन मैथमेटिक्स अप्लाई होता है ना कि उतना अगर फीट है तो इधर कितना मीटर्स होना चाहिए, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड सिटीज भी आपको डेवलप करने पड़ते हैं। नहीं तो आपने कैरेक्टर बना दिया और बिल्डिंग छोटी हो गई उसके सामने, तो आपको ये सब वो सब आर्किटेक्चर वो सब सोचना पड़ता है कि वो ये कितने दिस लाइक ऑल द डिपार्टमेंट्स वर्क टुगेदर। दैट्स व्हाई ऐसा नहीं कि एक ही आदमी को पूरा कैलकुलेशन भी आना चाहिए, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, सभी आना चाहिए। फिर उनका फाइनल टेक्सचर्ड मॉडल की वो 3D में कैसा दिखेगा, सेम कैरेक्टर, ये प्रोसेस में वो चले जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है, और वो कलर में अभी ये कैसे दिखेंगे, जैसे आपने 2D में उनका स्केल गाइड दिखा था। सो गेटिंग माई पॉइंट, डिफरेंट फास्ट है डिपार्टमेंट्स कि वो
कम्युनिकेशन हो जाता है एवरीथिंग, बिकॉज इट इज लाइक ये सेम फिल्म मेकिंग की प्रोसेस रहती है ना, वैसी ही है, बट फिल्म मेकिंग में इतना थोरो में, इतना डिटेल में नहीं, बिकॉज वहाँ पे तो कास्टिंग हो जाती है, कैरेक्टर्स होते हैं, लाइव कैरेक्टर्स और वो सब हो जाते हैं। इसमें तो हम लोग को ही डिजाइन करना, एंड दैट्स अच्छा, लड़कियों का मॉडल है ना, जनरली वो लड़के ही ले लेते हैं, सर हमको डिजाइन करने दो, वो उनके कॉस्ट्यूम हम लोग डिजाइन करेंगे, उसका हेयर स्टाइल और हम लोग डिजाइन करेंगे, हम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों के आजकल तो लड़के भी अच्छा लड़कियां डिजाइन करने लगे, ज़्यादा ही मॉल में जाते तो ज़्यादा ही ऑब्जर्वेशन करते वो लोग तो बैकग्राउंड्स में भी सेम अप्लाई हो जाता है कि बैकग्राउंड का पहला लाइन आर्ट बनाते हैं कि वो कैसा सिटी होगा, कॉन्सेप्ट होगा, उसमें कितने कितने पोर्शन हो सकते हैं उनका, लाइक लिटरली देखो ना, ये दिस इज काइंड ऑफ आर्किटेक्ट में भी टोपोलॉजी और वो सब हो जाता है, तो एनिमेशन में भी है, भले वो उनके शेप्स एकदम अनकॉमन है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हम लोग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट उसका रोड का रोड मैप और वो सब तो हम लोग वी हैव टू फॉलो दिस थिंग्स, बैकग्राउंड कलर रेफरेंस, बैकग्राउंड प्लान एंड एलिवेशन। अभी प्लान एंड एलिवेशन ये वर्ड्स होते हैं आर्किटेक्चर इसमें, बट एनिमेशन इंडस्ट्री में भी हम लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, और ये वर्ड्स का इंट्रोडक्शन उल्टा एक्चुअली देखा जाए ना, तो मुझे आई एम ब्लेस्ड कि एनिमेशन इंडस्ट्री में होने के कारण आई एम इंट्रोड्यूस टू ऑल दिस थिंग्स, आर्किटेक्ट, कॉस्ट्यूम, कलर्स, हैमलेस जैसा शॉप्स, या सिमुलेशन, मैथमेटिक्स, यू गेटिंग माई पॉइंट। मीन्स ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि इसमें बहुत मेजर उल्टा टैलेंट आपको चाहिए और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवन मोर देन। मैं तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं बैंक में नहीं हूँ, नोट नहीं गिनता हूँ, सिर्फ एक ही मोनोटोनस जॉब। अगर मैं आज रहता तो आई वुड हैव लाइक गॉन कि क्या एक काम, वो बैंक में जाता तो आप कैसे कर सकते हो कंटाला नहीं आता क्या नोट ये कर करके, बट पीपल आर लाइक दैट, दे आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी, ठीक है अभी ये बैकग्राउंड हो गए, कैरेक्टर हो गए, तो प्रॉप्स भी आ जाता है, तो प्रॉप्स का डिजाइनिंग, तो उनको 2D में अगर फॉर एग्जांपल कोई एक कैरेक्टर बना रहे तो ये समोसा ये वो सब, तो नारियल कहीं पे भी जाए सिंघम, वो नारियल गिरना चाहिए, वो आई डोंट केयर कि वो पीछे झाड़ होना चाहिए, क्यों लॉजिक, बच्चों के लिए लॉजिक कौन अप्लाई करता है, क्या जरूरत है उनको कहीं भी गिरना चाहिए बस, दैट्स इट। सो ये छोटे छोटे प्रॉप्स वो डिजाइन करना, तो दीज आर काइंड ऑफ प्रोसेसेस, उनका भी सेम प्रोसेस, पहले 2D में बनाओ, फिर उसको कैसे कर सकते हैं 3 डायमेंशन में कैसे दिख सकता है, वो उनका डिटेलिंग करो। फिर आ जाता है ये स्टोरी बोर्ड कि उसके कैसे यानी आपके अभी सब फैक्ट्री के लिए रेडी हो गया मटेरियल सब, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करना ना, तो किसी ने तो स्टोरी लिखा है, तो स्टोरी में जो बोर्ड्स है तो उसका एक इसमें भी कैमरा लेआउटिंग, ये फाइन आर्टिस्ट बनाते हैं, लेकिन उनके साथ में डायरेक्टर बैठ जाता है, डायरेक्टर का जो चीज़ है सिनेमेटोग्राफी का, ये लॉन्ग शॉट रहेगा, क्लोजअप शॉट रहेगा। अभी इसमें फिल्म मेकिंग जो टेक्निक है, थियरी है, दैट अप्लाइज कि पहला ही एस्टेब्लिशमेंट, एक लोकेशन एस्टेब्लिश करो कि फुरफुरी एरिया दिख रही है, उसके बाद में क्लोजअप जाओ, मिड क्लोजअप जाओ। अभी ये सिनेमेटोग्राफी, फिल्मोग्राफी जो है ना, ये अप्लाई हो जाती है इसमें, यहाँ से ये स्टेज से स्टार्ट हो जाती है फिल्मोग्राफी। So animation filmmaking is also same filmmaking, same techniques है इसमें भी। इसका आई गेस अभी प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठीक है, मेरा उसमें मैं ये कर दूंगा, बट ये वीडियोस थे मेरे पास में दिखाने के लिए, आई चेक कि मैं टैब से दिखा सकता हूँ। तो पहले ये इनके एनिमेशन बन जाते हैं, फिर उसका ग्रे स्केल, ये ग्रे स्केल में एनिमेशन हो जाता है, एनिमेटर ग्रे स्केल में एनिमेटर करता है, बिकॉज फाइनल कलर लगा के डायरेक्टली कभी भी उनका काम नहीं होता, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये ग्रे स्केल में रेंडरिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर माया और जो ब्लेंडर्स और वो सब सॉफ्टवेयर थे उसमें हम लोग ये कर देते हैं, एंड देन लाइटिंग के रेफरेंस दिए जाते हैं, लोग लाइटिंग करते हैं, ये डिपार्टमेंट अलग जो मैंने आपको बताया था ना, तो उनका डिपार्टमेंट उनका काम ये है कि अगर एक कुछ लोकेशन बना है तो उसके अंदर लाइट्स कैसे लगेंगे, कौन सा लाइट क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइटिंग आर्टिस्ट को हर एक टेक्सचर का नॉलेज होना ज़रूरी है कि अगर मुझे इसको प्लास्टिक जैसा बताना तो प्लास्टिक का रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, अगर ये सॉफ्ट मटेरियल तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस करेगा। सो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ अ टेक्निकल थिंग्स जो लाइटिंग आर्टिस्ट को सोचना पड़ता है, इतने माइनर डिटेल्स रहते हैं इसके।
एंड देन दीज आर द लाइटिंग प्रोसेस, रेंडरिंग प्रोसेस। ये मैंने बताया था ना कि सबको अलग अलग करते हैं, बैकग्राउंड को अलग करते हैं, उनके शेडोज को अलग अलग करते हैं, रेंडर करते हैं, बिकॉज सबको साथ में रेंडर करना इट्स नाइट मैन, यू नीड अ सुपर कंप्यूटर फॉर दैट। तो उसको सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने बोला अलग अलग करते हैं, और फिर उसको जाके कंपोजिट कर देते बाद में, एंड देन यू सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वाइज आपको समझ में आ गया। एनिमेशन प्रोसेस क्लियर है? और एलैबोरेशन कुछ चाहिए? एनिमेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस किसी को पता था पहले? नहीं? ओके, तो अभी क्लियर है? और कुछ डाउट्स है इसमें? नहीं ना? इंटरेस्टिंग है? बोरिंग नहीं हो रहा ना? हाँ, नींद आ रही तो थोड़ा झपकी ले लेते हैं। अच्छा, अभी एनिमेशन इंडस्ट्री, अगर आपको अभी नाउ आई विल कम टू, ये तो प्रोसेस समझ में आ गए, आपने देखा भी। तो एनिमेशन इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्रीज के लिए, यानी आप लोग एनिमेशन सीख के बेसिकली पूरा प्रोसेस सीख के, ये सब फंडामेंटल्स पूरा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भले मुझे एनिमेटर बनना है, या आपको लाइटिंग आर्टिस्ट बनना है, या कोई भी कुछ भी प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट बनना है, एनी यूनिवर्सिटीज, एनी इंस्टीट्यूट्स, आई प्रेफर कि आप पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को स्टडी करो। आप रिगिंग भी सीखो, आप ये भी सीखो, तो आपको ना पता चल जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो जाता है, समझ रहे हो? तो आप अगर कुछ, मैं आई वॉज इन टू कॉम्पोजिटिंग, लाइटिंग, फाइनल लुक एंड फील और बनाने वाले, तो मुझे ये सब प्रोसेस, आई एम फिल्म स्कूल मेरा डिग्री हो चुका था, तो मुझे पता था कि एक डायरेक्शन कैसे करना है, लिखना कैसे है, मॉडल कैसे करना है, कॉन्सेप्ट आर्ट, विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो दैट्स द रीजन आपको सब पता है, यू शुड नो, बट एट द एंड आप कोई भी इसमें फाइनलाइजेशन या आपका स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अभी हमारे टाइम पे तो एनिमेशन में जब भी हम लोग ये करते थे तो इतने ही थे, एनिमेशन स्टूडियोज, विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज जो फिल्मों के लिए काम करते हैं, गेम स्टूडियोज जो गेम का भी सेम पाइपलाइन है, उसमें एक और खाली वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो एडिशनल आ जाता है, बट प्रोसेस तो सेम ही है। उसमें भी मॉडल करने पड़ के, उनके वॉक साइकिल, जंप और वो सब आपको बना के रखने पड़ते हैं, वो लाइब्रेरी हो जाती है। प्रोग्रामिंग तो वो बेसिकली आप वो खेलते हो, प्रोसेस बट बेसिक यही है, विजुअलाइजेशन और वो सब। ये तो पहले के ज़माने में, यानी मैं ये आई एम टॉकिंग अबाउट 2000, 2010, 30, 20 तक इतना ही था कि मैंने एनिमेशन का कोर्स या एनिमेशन का डिग्री ले लिया तो मैं सिर्फ इसी में जा पा रहा था, एनिमेशन स्टूडियो, विजुअल इफेक्ट स्टूडियो, गेम स्टूडियो या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी। लिमिटेशन था, ये भी लिमिटेशन नहीं है, इसमें भी बहुत सारा ये था। बट अभी आज के तारीख में, नाउ आफ्टर पैंडेमिक, तो एजुकेशन इज ऑल्सो बिग 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 इंडस्ट्री फॉर द एनिमेशन, बिकॉज हम लोग अभी जो अपने टाइम पे आज बहुत सीनियर लोग भी है, तो अपने टाइम पे जो बुक का जो ये था, कंटेंट था, अभी थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारे टाइम पे तो प्रोजेक्टर तो कुछ देखे नहीं थे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो बट आज के तारीख में बाईजूस और वो सब ऑनलाइन ही आने के करंट, उनके यहाँ पे जो कंटेंट लगता है एनिमेशन, वो भी हम लोग एनिमेशन में बनाते हैं, टीचिंग का मटेरियल सब। तो सो दिस इंडस्ट्री ओपन, पैंडेमिक के बाद में तो ऑनलाइन टीचिंग हुआ था, तो बहुत सारा कंटेंट हम लोग ने, आई वर्क अ लॉट इन पैंडेमिक मेरे लिए परवनी था, लॉटरी लगा था हम लोग के लिए, हम लोग छाप रहे थे इन शॉर्ट, घर में बैठ के। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो, लोग चाइना को गाली दे रहे थे, मैं चाइना में रेंडर कर रहा था, मेरे बहुत क्लोज हो गए थे, बोला कि यू गाइज आर द ओनली पीपल हु आर ट्रस्टिंग अस, अदरवाइज द होल वर्ल्ड इज गिविंग गालीज। तो हमने चाइना के साथ में काम किया, बिकॉज वी आर ह्यूमन, और हम लोग एनिमेशन आर्टिस्ट हैं, हम लोग, हमारा कोई पॉलिटिकल कुछ हमारा एजेंडा नहीं रहता, तो वी आर लाइक हैप्पी विद ऑल द ह्यूमंस। सो हमने बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए कंटेंट बना के दिया, जो भी बेसिकली एक्सप्लेनरेटरी वीडियोज और वो सब। सो वी नेवर चार्ज बॉम्ब टू देम, बट वी गॉट गुड मनी। AR/VR कंटेंट देखो ना, ये सब, ये दीज आर लाइक ऑलरेडी है, बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूट जो दे आर लाइक एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे ये लोग ऐसा सिखाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी देखो ना, कैरेक्टर कैसे बनने का, ये हमारे टाइम पे तो ये ग्राफ रहता था, पेपर पे सिखाते थे। सो ये एजुकेशन इंडस्ट्री, स्कूल इंस्टीट्यूशन डेमोन्स्ट्रेशन वाले वीडियोस हमारे लिए एक बढ़ गया, तो एनिमेशन में अभी मेरा और भी ज़्यादा एक ये आ गया। उसके बाद में फैशन, आजकल आप लोग देख सकते हो कि आप मॉल में जाके यू कैन जस्ट चेक द ड्रेस कि वो कैसा लग रहा है वर्चुअल। सो दीज आर लाइक क्लॉथ है ना, तो आपको बना के रखना है लाइब्रेरी,
एनिमेशन में ये ना मॉडल करके रख देना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड, सो दिस इंडस्ट्री ओपन्स। आजकल तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है, एआई आ गया या जो भी आ गया, तो हमारा तो और भी काम बढ़ गया, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, उल्टा और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे। तो नाउ दिस ऑल्सो इज एन इंडस्ट्री, नॉट नेसेसरी मैंने एनिमेशन सीखा तो मैं सिर्फ कार्टून बनाऊँ। ये लो आपका फेवरेट एनिमेशन, यू कैन सी AR VR के थ्रू आप ड्रेसेस बना सकते हो, कैसा क्या दिख रहा है, इवन ज्वेलरी फॉर दैट, नॉट ओनली ये ज्वेलरी, नेकलेस, ऑल द गर्ल्स आइटम, आप लोग ज़्यादा जानते हो मेरे से भी। रियल इस्टेट आर्किटेक्ट, पहले तो बिल्डिंग बना के वो सैंपल फ्लैट दिखा देते, आजकल तो 3D में एनिमेशन में हम लोग बना के दिखा देते, वर्चुअल पूरा टूर करा देते कि ये कैसे दिखेगा। यू कैन, आप लोग तो अभी देखते भी रहेंगे बहुत सारा इंस्टा पे या इस पे रील्स में, तो लोग सब लोग डिजिटल, सो कार, इवन कार फॉर दैट मैटर, रियल एक्सपीरियंस और वो सब। सो कार इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट, सो एवरीथिंग गॉट ओपन। इनके लिए भी आप सर्व कर सकते हो। मेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट आज के तारीख में, बिकॉज अर्लियर इट वाज वेरी रिस्की कि एक एक्चुअल बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करो और टीचिंग करो। यहाँ पे तो आप CGI बॉडी क्रिएट करके उसका ह्यूमन एनाटॉमी वो कैसा ये करता है, ऑपरेशन बेसिकली दे हैव स्टार्टेड टीचिंग। तो कैन यू इमेजिन, तो डॉक्टर तो एक रिस्क फैक्टर उनका कम हो गया। सी एट द एंड बना के कौन दे रहे हैं CG कंटेंट, एनिमेशन का कंटेंट, वी आर गिविंग, वी आर प्रोवाइडिंग देम द कंटेंट। सो ये भी एक, और इसमें अगेन हो गया ना कि अगर मेरे पास में एक मेरी सिस्टर, क्लोज सिस्टर आई थी, उसकी मॉम बोल रही थी उसको कि शी इज लाइक 98%, 99% एंड शी वांटेड टू डू एनिमेशन। बोलो व्हाट्स रॉन्ग, लेट हर वर्क। तो उसने सीखा, नाउ शी इज गिविंग, शी इज सर्विंग टू साउदीज एंड ऑल द इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट एंड शी इज क्रिएटिंग द एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, अंदर के सब पुर्जे सब पूरा उनको बना के देते, बिकॉज शी नोज द टेक्सचरिंग। बिकॉज भले साइंस था लेकिन उसका आर्ट के तरह ज़्यादा ये था, तो उसने वो अप्लाई किया कि एक टेक्सचरिंग, कलर्स और वो सब, उसका नॉलेज अच्छा था। सो शी अप्लाई एंड नाउ शी इज डूइंग वेल। गेटिंग माई पॉइंट कि इतना क्रिएटिव भी है। सिमुलेशन, दिस इज द सबसे बड़ी इंडस्ट्री वी आर सर्विंग ऑलरेडी एंड आई फील प्राउड कि मैं एनिमेशन इंडस्ट्री में हूँ। बट हम लोग देखते हैं, उरी देखते हैं या जो भी देखते हैं कि यार इंडियन आर्मी के लिए कुछ करना है, बट आई फील प्राउड कि अभी मैं भी आई सर्व टू इंडियन आर्मी। उनके जो भी प्रोडक्ट्स और ये रहते हैं बहुत सारे बॉर्डर में या कोई कश्मीर में एकदम एक्सटीरियर में, कुछ उन लोग के प्रोडक्ट मैनुअल जाते, पहले वो बुक जाते थे, अभी हम लोग वीडियो क्रिएट करके देते थे कि हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। तो जो भी अगर कुछ कोई एक बॉर्डर पे कहीं पे भी है, उनको वो लोग तो भेज देते, बट वी क्रिएट अ वीडियो सो दैट उनके मोबाइल में वो लोग देखते कि इसको कैसे ये करना है। सो आई फील प्राउड कि आई एम सर्विंग टू माई कंट्री ऑल्सो, नॉट ओनली मैं सिर्फ मोटू पतलू नहीं कर रहा हूँ, एक कंट्री को भी सर्व कर रहा हूँ। इट्स काइंड ऑफ अ सोशल, बजट्स नहीं, लेकिन यू फील प्राउड, यू डूइंग गुड फॉर देम। बिकॉज ये यहाँ पे तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, पहले तो ये सिमुलेशन, अभी सिमुलेशन फ्लाइट सिमुलेशन, फ्लाइट सिमुलेटर, वो हम लोग CGI में ही फ्लाइट बना देते हैं, और वो जो है तो यू सेव लॉट ऑफ पेट्रोल कॉस्ट, एक्चुअल उनका जो फ्लाइंग टाइम और वो जब वो सब कॉस्ट यू सेव। सो वो लोग एनिमेशन इंडस्ट्री को ही अप्रोच करते हैं, कोई स्टूडियो को, कि हमको ये सिमुलेशन बना दें। तो दैट्स ऑल्सो बिग नाउ, बिकॉज रिस्क फैक्टर उनका कम हो गया और हमको भी एक अच्छा, दे हैव गुड डिफेंस, और इसरो हो, स्पेस सेंटर्स हो, उनको अच्छा, उनके पास में बजट है, तो वी, सो एनिमेशन इंडस्ट्री सर्विंग टू देम ऑल्सो। अरे अगर मुझे एस्ट्रोनॉट होना था, नहीं बन पाया कुछ, ये आई एम सर्विंग टू दैट इंडस्ट्री। आई एम डिजाइनिंग, मैं अभी गवर्नमेंट के साथ में एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं हम लोग एक बच्चों के लिए बस डिजाइन कर रहे हैं, जो बस में आप जाओगे तो आपको 360 डिग्री जैसा प्लानिटोरियम रहता है, तो वो डिजाइन करके। अच्छा, प्लानिटोरियम तो CG में बनाना पड़ेगा ना, एक्चुअल शूट करके थोड़ी ना ला सकते हो आप, तो आपको गैलेक्सीज और वो सब बनाना है, तो वो, सो we are like going way ahead, serving all the industries. You name the industry we are serving. Forget about this thing. चलो एनिमेशन, दिस इज माई वन ऑफ, अभी तो मेरा सीरियल के लिए काम करना हो गया, टेलीविजन के लिए काम करना हो गया, VFX के लिए बॉलीवुड काम किया, हॉलीवुड काम किया, बहुत हो गया, मराठी फिल्म्स के लिए सर्व किया, बहुत हो गया।
4K 2K थिएटर्स इनफ. अभी आई एम टायर्ड ऑफ, अभी आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन दिस लाइक प्रोजेक्शन मैपिंग, बिल्डिंग प्रोजेक्शन मैपिंग. यू कांट इवन, आपने देखा बुर्ज खलीफा दुबई में, उसके ऊपर जो कंटेंट होता है ना, दैट्स अ ह्यूज कंटेंट, दैट ऑल्सो वी मेक. दैट अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक आपको पता भी नहीं कि वो कैसे बनता, बट द प्रोसेस इज बेस, फाउंडेशन वही है. वो किया था, इसके लिए मैं वो कर पाया. आज एक गांधीनगर में 360 डिग्री एक शॉट बनाया, एक ही शॉट है जो गांधी जी वो टाइम पे उन्होंने पास बर्निंग का एक शॉट था 3.5 मिनट का. सो दैट्स अ परमानेंट इंस्टॉलेशन. आई लाइक वर्क इन 12 कैमराज. सो दिस इज अ बिल्डिंग प्रोजेक्शन मैपिंग. ये अमृतसर में एक फोर्ट है, जहाँ गोविंदगढ़ करके एक फोर्ट है, वहाँ पे जनरल डायर का बंगलो था. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड दे आस्क मी टू डू समथिंग. तो हिस्ट्री हम लोग बताते हैं बिल्डिंग के ऊपर, वॉल पे. तो प्रोजेक्शन, तो आप यहाँ से खड़े और बिल्डिंग एकदम 50 फुट 100 फुट आगे है और आप पूरा बड़ा शो देख सकते हो. तो दैट्स अ डिफरेंट, इमर्सिव बोलते हैं इसको, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. सो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमेशन. बिकॉज आप देख सकते हो ये एनिमेशन, ये ब्लास्ट और वो सब एवरीथिंग. तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट है ना. एनिमेशन है ना, सिर्फ ऐसा नहीं. अभी आप देखते हो ना, अभी आज तो ऑल द स्टेट्स, ऑल दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द इमर्सिव टेक्नोलॉजीज. आप कहीं पे जाओ, आप सरदार पटेल का एक म्यूजियम है फॉर एग्जांपल, गुजरात में जाओ तो वो लोग उनको प्रमोट करते हैं, उनका गुजरात का हिस्ट्री बताते हैं. महाराष्ट्र में कोई एक जगह है, वहाँ पे वो शिवाजी महाराज का हिस्ट्री बताएंगे, उसमें एनिमेशन करेंगे. और ये सब बेसिकली इमर्सिव. अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिस्ट्री हो या किसी का भी होलोग्राफिक हो, एवरीथिंग कम्स अंडर हु प्रोवाइड्स द कंटेंट, एनिमेटर्स, एनिमेशन इंडस्ट्रीज. सो ये तो सबसे बड़ा अभी आज के तारीख में है. तो लोगों को पता भी नहीं है कैसे बनता है, पूरा 360 डिग्री वॉल बन जाता है. आई जस्ट लाइक एक हफ्ते पहले मैंने एक शो डिज़ाइन करके गुवाहाटी में हिस्ट्री ऑफ टी, एक 15 मिनट का शो मैंने उनको डिज़ाइन करके दे दिया फ्रॉम द राइटिंग. आज उसका रिकॉर्डिंग असम में वो 360 डिग्री में चल रहा है, बट उसका राइटिंग मैंने वहाँ पे जाके 6-8 महीना रिसर्च करके, जब भी यहाँ पे पुणे में ही मैंने लोकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट से जब भी रिकॉर्ड करके लिया. सो वो स्टूडियो ओनर, वो रिकॉर्डिस्ट बोलते पुणे और चाय का इक्वेशन तो ऐसा है कि हम लोग मर जाएंगे चाय बंद कर देंगे तो. बट ये हिस्ट्री नहीं पता था हमको कि चाय कहाँ से आई, इंडिया में कहाँ से आई, कितने सालों पहले आई. किसी को पता है कभी आई इंडिया में चाय? चाय पीते हो ना, सुबह शाम चाय लगता है, बट वो कहाँ से आया, उसका जन्म कहाँ का है, ओरिजिन क्या है. So that is also interesting stories people should know. So we have designed that. That's a creative process. लिखने भी मजा आया, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई. And as an artist, digital artist, I gave something to the society because it's a permanent installation. आपको कभी भी जाना है तो आप आसाम में जाओ, वो टी गार्डन में ही बेसिकली एक पूरा 1300 एकड़ का टी गार्डन में ही आप पूरा वो चाय कैसे आई वो सब हिस्ट्री दे सकते हो. सो दिस इज काइंड ऑफ अ बेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमेशन. आई फील ब्लेस्ड हिस्ट्री म्यूजियम जैसे ये करने. इवन आई विल टेल यू, लॉ और फार्मिंग को भी हम लोग अभी हैव स्टार्टेड, लाइक फार्मर्स को भी कैसे बनाना. अभी तो जियो और इसके वजह से है ना, अभी फार्मर्स के भी हाथ में आ गए, तो उनको भी अगर कुछ खेती बचाना है, उनका ये करना है, तो उनके भी वीडियोस चीज़ें एनिमेशन में करके. तो दीज आर ऑल्सो आफ्टर सम टाइम लॉ ऑल्सो विल कम, मे बी वर्चुअल ये करके ही वो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. एक ये बनाओ, वर्चुअल जज बना दो उसको डेटा दे के रखो, इंफॉर्मेशन दे के रखो, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशंस. ये आइडिया है जस्ट ऐसा अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. सो एनिमेशन का सबसे बेस्ट पार्ट मैं अभी वही एक और बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली यू विल गो एंड वर्क फॉर समवन, कि बस नौकरी ही नहीं है एनिमेशन में. टुडे आई हैव माई ओन स्टूडियो, आई एम एंटरप्रेन्योर नाउ. मैं खुद के आईपीज में, जैसा मोटू पतलू एक हो गया, वो किसी दूसरे के लिए मैं काम कर रहा था. आई वॉज वर्किंग फॉर समवन एल्स. इट वॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स मोटू पतलू इज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है जैसे डिजिटल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज योर हाउस, बंगलो, लैंड इज अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. इट हैज़ अ वैल्यू. आप 10 लाख को लोगे, 5 साल के बाद में उसका कुछ अलग ही हो जाएगा.
दिस इज वॉट मोटू पतलू वी कॉल्ड एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लाइक मोटू पतलू का एक वैल्यू है, इट्स अ शेल्फ लाइफ. जैसे आपको पता रहेगा ना टॉम एंड जेरी एक आईपी था किसी और का, 80 में उन्होंने बनाया था. उसके बाद में वो बंद हो गया, 20 साल 25 साल के बाद में आज वापस से उन्होंने वो शेल्फ में से निकाला, लोगों को दिखाया, एंड नाउ दे आर अर्निंग इन बिलियंस. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो तो ये अभी सबसे बेस्ट पार्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बना सकते हो खुद का. और एनी टाइम आई हैव लाइक 10 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नाउ विथ मी. मैंने खुद का अभी 4 साल जो था पैंडेमिक में, तो काम करते करते हम लोग सोचते भी थे लाइक एक आइडिया लिखते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग का गाड़ी गया वो होटल का एंट्रेंस पे रुक गया, हम लोग उतरे और देखा मैंने कि अरे वो वही सेम गाड़ी गई पीछे होटल का, रेस्टोरेंट का पीछे बैक साइड में. तो उन्होंने देखा उधर से गुस्से, साले तुम लोग भी इधर ही आ गए मरने के लिए और हमको खाने के लिए. तो वो आ जाएगा, हम लोग बैठेंगे, मैं टेबल पे हम लोग दोनों बैठे, फिर वेटर आया कि सर क्या चाहिए आपको, बटर चिकन, चिकन मसाला, चिकन मसाला, चिकन रोड़ा, चिकन पाउडर, तो इतने सारे चिकन के आइटम. और वही, और उसने वो लेके आया वही मुर्गी को प्लेट में कि सर क्या बनो. तो वो मुर्गी मेरे को देख के इतना गुस्सा हो गया, शी सेड ए नाउ क्या है ये. एंड नाउ मुर्गी ने तांडव करना शुरू कर दिया कि बॉस बहुत हो गया तुम लोगों का, क्या है चिकन मुर्गियाँ, वी आर ऑल्सो, हमें भी जान है. एंड नाउ शी स्टार्टेड, और उसने हम लोग को ये कर दिया. नाउ देर इज अ कुकरी शो आई एम डिजाइनिंग, जो मैंने लिख दिया लेसन्स फ्रॉम चिकन हाउ टू बी वीगन. अभी वो रेसिपी सिखाएगी, वो अभी एक कैरेक्टर को मैं खड़ा कर दूंगा जो एनिमेटेड रहेगा, एंड नाउ शी विल वेजिटेरियन पूरा मुर्गी रेसिपी बताएगी कि ये करो, ये भी सब्जी होती है, ये सब्जी होती है, वेज कैसा बनना है वो मुर्गी सिखाएगी. लेसन्स फ्रॉम चिकन हाउ टू बी वीगन. तो एक ये ऐसे ही आइडियाज सोचते अपना हम लोग को. फॉर एग्जाम्पल एक और मैं गया था पिंकी करके, मेरे पास में मोटू पतलू के बाद में एक ये था कि कॉमिक बुक था, पुराने लोगों को पता रहेगा उसके. तो मैं उसके ऊपर भी एक आइडिएशन लेके मैं चैनल के पास में गया कि मुझे बोला कि मैंने ये पिंकी बनाना है, मैं सीरीज बनाऊंगा. मतलब तो उन्होंने, चैनल ने बोला मुझे कि आंसर मिला मुझे, दैट्स अ रियल फैक्ट आंसर, डोंट शो इट टू ऑल, कि सर आप पिंकी करके मत बनाओ. मैं बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है. बोला हमारा सो कॉल्ड रिसर्च टीम है, मुझे पता नहीं, मुझे अगर कहीं मिल गया ना वो रिसर्च टीम तो मैं उनको भर चौक में जला डालूंगा. सॉरी. तो उन्होंने बोला कि 90% रिमोट, हमारा रिसर्च है 90% रिमोट लड़कों के हाथ में रहता है, लड़कियों के हाथ में नहीं रहता, तो इसके लिए वुमन ओरिएंटेड कुछ भी मत लेके आओ. बोला क्या, कौन हो आप लोग, आप एक वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ये कर रहा है और तुम लोग ये कर रहे हो. देन आई डिसाइडेड, आई लेफ्ट द चैनल में, बोला कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बना के दे रहा हूँ. एंड देन सडनली आई केम टू फर्ग्यूसन कॉलेज के बाजू में मेरा एक दोस्त का ये था, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर उधर ही आ गया. बोला ये ऐसे बोलते हैं, इतने घटिया लोग हैं, घटिया सोच रखते. तो मैंने देखा उसके सामने एक दीनदयाल हॉस्पिटल है, आपको पता है, तो वो अभी है ना गर्ल्स हॉस्टल हो गया है. तो और दिस इज अ फैक्ट, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ उसका. मैंने बोला कि ये क्या, ऐसा क्यों, ऐसा पढ़ी हो क्या. बोला, तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसका ना एक स्टोरी है दीनदयाल हॉस्पिटल करके, पता नहीं ये फैक्ट है कि नहीं, बट मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, मुझे तो एक आईपी सूझा उसके ऊपर. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना ये कैंसर, ये एकदम घटिया हॉस्पिटल था, लो ग्रेड का. अगर सोचो एक कैंसर हुआ है, 6 महीने ही बचे मेरे, और उसको जाना है ऊपर जल्दी, तो वो उधर दीनदयाल में उसकी फैमिली उसको करते 2 महीने में वो पैकअप होता था. सो दिस इज काइंड ऑफ हिस्ट्री. मैंने बोला ये क्या है, ये कैसा बकवास है. मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी, गवर्नमेंट ये था तो उनको नहीं मिलता था, तो वो, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया. अभी नाउ दैट इज अ गर्ल्स हॉस्टल. तो मैंने बोला यार ये भी तो मस्त कॉन्सेप्ट है भाई, इधर भी तो कुछ बनेगा. तो अभी मैंने जो डिज़ाइन किया ना, तो मैंने बोला कि हाँ चलो, अभी एक लड़की नहीं बोला ना उन्होंने, पिंकी नहीं बोला ना, तो यहाँ पे अभी 5 लड़की है, 5 लड़कियाँ वो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है. और सडनली एक जन आई है, एक लड़की आई है जिसको एस्ट्रोनॉमी में कुछ तो ये पढ़ाई करना, बिकॉज पुणे माहिर है एजुकेशन से. एक आई है इंजीनियरिंग करने, एक आई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने, एक आई है डॉक्टर बनने. तो अलग अलग लड़कियां, अलग अलग, एक लॉयर बनने आई है, तो दिस काइंड ऑफ एक कुछ इंजीनियरिंग करने के लिए आई है. हेलो, हाँ.
तो ये बेसिकली 5 अलग अलग लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और अभी नाउ उनको एक रात में जैसे स्टार्ट गया तो उनको वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आने लगी कि इसमें इधर तो कुछ तो है। और ये तभी एक मेस में बैठे डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को ना कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ है, मुझे ऐसा लगता है मेरे रूम में कोई और है। बोला चलो ठीक है, तो 5 लड़कियां लेकिन मेरी स्ट्रांग है एकदम, वो कोई डरने वाली नहीं है किसी से भी। तो लोग बोलते काम कर दे, चलो कम्युनिकेट करते हैं इनके साथ में तो देखते क्या बोलते, और दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, और उन लोगों को पता चलता है कि ये, फिर वो लोग अपने दुखियारी वो आत्माएं बोलते कि यार मैं तो यार अभी 14 फरवरी था यार वैलेंटाइन, और मैं पहले ही गया मुझे मिलना था। तो हर एक जन अपनी अपनी थॉट्स देते थे कि मेरी इच्छाएं अधूरी रहेगी। नाउ दैट गर्ल्स विल स्टार्ट, वो लोग मेरी फाइटर्स हैं, वो लोग उनकी पूरी ये कर देंगी, वो लोग उनको जो भी है, किसी को लाना है, बॉयज को लाना है हॉस्टल में, वो पूरा फाइटिंग, फायर फाइटिंग, एवरीथिंग कि कैसा कम्युनिकेशन करना है, क्या उसको एग्जैक्ट हो गई ना। और उसके बाद में वो लोग उनको मुक्ति दे देते हैं, एंड देन सडनली दे सी कि अरे यार तो देखा वो गर्ल्स हॉस्पिटल के बाहर तो लाइन लगी है, ये सब आत्माएं हैं इनको भी बोला अभी तो 5 लड़कियां मेरी सुपर हीरोइंस है, तो इनको, सो दैट्स अ सीरीज काइंड ऑफ, दिस इज काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस यू कैन डेवलप, समझ रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ एनिमेशन, क्योंकि मैं कुछ भी विजुअलाइज कर सकता हूं, लिमिटेशन नहीं है, और अच्छा थॉट हम लोग ये कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? फिल्मों के लिए, VFX के लिए या लाइव एक्शन एड्स के लिए वो दुनिया अलग है, लेकिन हमारी दुनिया ही अलग है एनिमेशन की। हमें जो दिखता है, जो सोचते हैं हम, कोई नेगेटिव चीज़ को एक कुछ अच्छे पॉजिटिव चीज़ में, अभी आपने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में एक मुर्गी की गाड़ी के सामने, बट उसके बाद में ये होने वाला, इसका आउटकम ये आ सकता है, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। वही एक आप एक कुछ अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। और ये आपको डे टू डे आपको ऑब्जर्व करते रहना है लोगों को कि क्या होता है, कैसा है। नॉट नेसेसरी कि यू नीड टू वर्क। मेरे कोई भी टॉपिक पॉलिटिकल नहीं है, मुझे नहीं पसंद, वो एरियाज ही नहीं पूछा। मुझे वो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं जो हैप्पी रखे, खुश रखे तो दिस इज काइंड ऑफ अ एनिमेशन एक्सपोजर। और ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अभी मैं ये बनाऊंगा उसको, अभी लोगों को आइडियाज पसंद आते हैं। आई गॉट द इन्वेस्टर्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल, एंड आई विल स्टार्ट डेवलपिंग, आई विल स्टार्ट गिविंग। तो मेरा खुद का कंपनी, खुद कर रहा हूँ, खुद का टाइमिंग, देयर इज नो ऐसा किसी के बॉस के अंडर काम करना है। इवन हमारे इंडस्ट्री में, एनिमेशन में भी हमने जो कल्चर रखा था, देयर वाज नो बॉस कल्चर काइंड ऑफ। क्रिएटिव हो, क्रिएटिव को स्पेस देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कि आप प्रेशर देके पूरा एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री। हम लोग कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करते, बिकॉज प्रेशर से क्रिएटिविटी नहीं निकलती, खाली चकलियाँ ही बनती है। तो दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन। सो दैट्स एक्चुअली ऑल। बहुत ज़्यादा हो गया या कम हो गया टाइम, या बोर हो गए? वी हैव टाइम। तो सो ये है एनिमेशन प्रोसेस से लेके, इंडस्ट्रीज से लेके आपको पता चल रहा रहेगा। तो नाउ इफ यू हैव कुछ क्वेश्चंस एनिमेशन रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी नाउ। आई गेस वी शुड ओपन फॉर इंटरेक्टिव सेशन। शोले 3D का थोड़ा सा बता दो। दिखा नहीं सकता, 3D है बेसिकली वो। आई विल टेल यू द प्रोसेस, बिकॉज वो VFX के अंडर आ जाता है, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो हुआ क्या था कि 2008-9 में हम लोग जब वी वर नॉट हैविंग प्रोजेक्ट्स, एनी प्रोजेक्ट्स, तो मोटू पतलू स्टार्ट किया था वो। तो ये 70s का फिल्म था, और हम लोग जो जी पे तभी आती थी, उसमें डस्ट स्क्रैचेस आते थे, पुरानी फिल्म। तो द कंपनी आई वॉज बिलोंग टू वॉज केतन मेहता। केतन मेहता वॉज अ वेरी लेजेंडरी फिल्म मेकर। तो उनको मैंने बताया कि सर ये ना, वो टाइम पे ना रेस्टोरेशन काम बहुत चल रहा था फिल्मों का। तो हमने पता किया, तो शोले का जो ओरिजिनल, बिकॉज इट्स अ विंटेज फिल्म, शोले इज द ओनली फिल्म विच इज़ अ विंटेज, हेरिटेज का उसको दर्जा है। उसकी ओरिजिनल नेगेटिव इज इन लंडन, जहाँ पे मोनालिसा का भी पेंटिंग है। बिकॉज आप एक कोई लेजेंडरी कुछ हेरिटेज काम करते हैं ना, तो वो उन लोग उसके इसमें उनका प्रिजर्व करने रख देते हैं, ठीक है। तो वो उनके पास में था, तो इनके पास में ड्यूब था। तो व्हेन आई गॉट इंट्रोडक्शन टू देम, तो उन्होंने उनके दैट्स ओनली एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है, कि किसी को भी पता नहीं है, शोले इज द ओनली फिल्म इन द वर्ल्ड,
आज तक, विच इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. नो फिल्म इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ना अवतार, ना ये जेम्स कैमरन, कोई भी नहीं. टाइटैनिक, शोले इज़ द कंपनी, तो उनके ग्रैंडसन को बिलोंग करती है. तो हम लोग जब भी उनको अप्रोच किया तो दे गेव अस द ट्यूब नेगेटिव. तो हमने देखा तो टूट रहा था. तो अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा, पुराने ज़माने में नेगेटिव्स होते थे. तो ना देन वी स्टार्टेड, वी वेंट टू द स्टूडियो, फेमस स्टूडियो. वहाँ पे हमने पहला वो स्कैन करना चालू कर दिया, उसको स्कैन किया तो टूट रही थी, तो उसको स्टिक कर करके उसके पूरे फ्रेम बाय फ्रेम. शोले पूरा 198 मिनट का फिल्म है. इट हैज़ लाइक 2,87,062 फ्रेम्स. आया लाइक लोगों ने 60-70 बार फिल्म देखी रहेंगे. मैंने 60-70 हज़ार बार देखी है वो, फ्रेम बाय फ्रेम. तो हमने उसको रिस्टोर किया, फिर उसको जो डेंटिंग पेंटिंग, जो स्क्रैचेस, डस्ट स्क्रैचेस, तो उसको क्लीन कर दिया. इट टुक ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का टाइम. 4 साल लगे मुझे करने के लिए. तकरीबन ऑलमोस्ट 350 लोग थे मेरे अंडर काम करने के लिए. तो वी रिस्टोर्ड एवरीथिंग, देन वी रीपेंटेड. तो उसके बाद में अभी रिस्टोर्ड हो गया, रीपेंट हो गया, डस्ट स्क्रैचेस तो निकल गए. तो अभी नया जनरेशन को दिखाना ना, बिकॉज 70s की फिल्म, 75 की फिल्म तो पुराने और कंप्लीट, यू कांट एडिट दैट फिल्म. You can't even edit one character. Each and every character, each and every dialogue लोगों के बाय हार्ट है. तो कुछ भी एडिट नहीं कर सकते. आई एम नॉट अलाउड, बिकॉज मैं वो करता था तो मुझे पाप लगता था. तो वो हम लोग ने वैसे उसको रिस्टोर किया. तो नया जनरेशन को लाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग ने उसको 2D to 3D कन्वर्जन वी क्रिएटेड, लाइक स्टीरियो बनाया. अगेन आई रेफर टू डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट की आप इतना गॉगल लगा के वो टाइम पे, बिकॉज 2009 में इलेक्ट्रॉनिक गॉगल थे, तो आप वो बूढ़े लोग भी देखेंगे, बच्चे लोग भी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे. तो वो इतना देर 3 घंटा 3.5 घंटा लोग बैठ सकते क्या. तो वी कीप इट सटल, कुछ एलिमेंट्स, 3D एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिए उसके अंदर. एंड देन वी क्रिएटेड, लाइक उसमें प्रोसेस होता है कि आपको, तो आपने अगर लॉग देखा रहेगा, आपने देखा था 3D में था, तो वो लॉग वॉज CGI. इट वॉज नॉट ऑन द ओरिजिनल फिल्म. जो का ट्रेन का सीक्वेंस हो जाता है, उड़ जाता है. 2010, 2013 में रिलीज हुआ था ये इंडिया में. उसको वापस मतलब व्हेन यू रिस्टोर्ड उसका जो स्क्रैचेस निकाल के वो किया, मतलब ऑन व्हाट फॉर्मेट, मतलब क्या वो जनरल आपके डिजिटल फॉर्मेट, DPX जो रहता है ना, सीक्वेंस फ्रेम्स रहते हैं ना, वैसा. और उसको फिर बाद में हम लोगों ने, इट्स अ DCP, जो डिजिटल सिनेमा प्रोडक्ट है. कन्वर्ट कैसे किया फ्रॉम नेगेटिव टू डिजिटल? स्कैनिंग, जैसे आप नेगेटिव को स्कैन करके एक JPG इमेज बनता है आपका. 2D या 3D? 2D. हाँ, तो वो हमने 2K में किया था, 4K नहीं गए थे हम लोग. वो टाइम पे 4K के, आज भी 4K के थिएटर्स नहीं है, मूवी बनती है. हाँ हाँ हाँ. अभी लेटेस्ट, अभी 10-15 दिन पहले, लास्ट दिसंबर में, वो राष्ट्रीय फिल्म आर्काइवल के पास में भी एक कॉपी हमने दिया था ना, उसको उन्होंने 4K में ये करके रिलीज कर दिया. फिल्म हेरिटेज वो 4K कर हाँ हाँ हाँ. That's we did it in 2002K. When you remove the dust and everything, what was that procedure? कौन सा मशीन पे किया था? देर आर, अभी मुझे वो सॉफ्टवेयर याद नहीं है, बट फेमस स्टूडियो में हमने परेल में किया था. दैट डायमंड या सॉफ्टवेयर है, विच रिमूव, लाइक बच्चे लोग फ्रेम बाय फ्रेम पेंट ये कर देते हैं. बेसिकली अगर आपको पता रहेगा, फोटोशॉप में भी आप पुराना फोटो रिस्टोर कर सकते हो, पता है. दैट्स सेम फंडामेंटल्स, सेम फंडामेंटल. सॉफ्टवेयर अलग है, बिकॉज आपका सीक्वेंस है ना, मोशन. नहीं, डायमंड करके था. नहीं, वो टाइम पे लेकिन आया था, टेक्नोलॉजी आया था, इट वाज एक्सपेंसिव. डायमंड करके सॉफ्टवेयर था, बट वो लोग वही करते थे. रिस्टोरेशन उसके बाद में तो कम हो गया. द सेम कंपनी हु रिस्टोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट कलर टू, ये किया था मुगल आजम, उन्होंने वो भी रिस्टोर हुई थी ना. तो सेम कंपनी डिड द रिस्टोरेशन ऑफ द शोले. और वी जस्ट क्रिएटेड, अभी नया जनरेशन को कुछ अच्छा अट्रैक्टिव चाहिए. years 4 years. And not only I restored visuals. और 2K, by the way, 2K 4K is the resolution 2000 by आपका जो है ना वो. नहीं तो इन लोग के सर के ऊपर से चले जाएगा. मतलब ये क्या बोल रहे थे लोग, वैसा नहीं हो. हाँ तो हाँ, CGI, VFX और एनिमेशन, ये जो डिफरेंस हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन है या? VFX animation is CGI, computer generated image. VFX and animation, it's CGI. CGI is not a different term. CGI, computer generated image. VFX, visual effects.
यानी विजुअल इफेक्ट भी क्यों करते हैं, ब्लास्ट और वो सब क्यों करते हैं, बिकॉज जो एलिमेंट्स हम लोग मैन्युअली जनरेट नहीं कर सकते वो कंप्यूटर जनरेट करता है. मैन्युअली ब्लास्ट नहीं कर सकते, मैन्युअली ये नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर जनरेटेड. दैट्स VFX ऑल्सो कॉल्ड CGI एंड इट इज कंप्लीटली प्योरली CGI. द VFX में उतना ही होता है कि हाफ द एलिमेंट्स आर CGI और बाकी का लाइव एक्शन, तो मिक्स हो गया आपका. बट CGI एनिमेशन में प्योर CGI, अभी इसमें मेरा कुछ भी ये नहीं है ना, तो प्योर CGI. Any of your work on stop block animation? और मिनी फॉर जियो के लिए हमने स्टॉप ब्लॉक एनिमेशन इज योर बेसिक फाउंडेशन. स्टॉप मोशन एनिमेशन इज द एक्चुअल आपको एनिमेशन आपका टाइमिंग और वो सब आपको सेंस पता चलते हैं. Did you know Celluloid? हाँ, Celluloid में किया? every software you name the कौन सा कैमरा यूज किया? I guess वो टाइम पे I don't remember because I did it in 2007. अभी हमको तो पता है कि हमारे टाइम में एक आदमी था दया भाई. हाँ दया भाई सब करता था. हाँ, in Mumbai. मुंबई. He हाँ. was the only one who does all the हाँ, animation work. हाँ. गुरुदत्त से लेकर पूरे फिल्म के टाइटल भी वही बना हाँ, रहा है. He was the only हाँ, one. हाँ. So what year you came to? हम लोग जो कहते हैं, आपको वैभव कुमारेश पता है? जो आपने अल्पेनलिबे और वो सब एड्स देखे हैं? हाँ. तो ही सब What year you came into animation? 2001 What year you came into animation? 2000. हाँ, then if you have done the stop block, that is Mitchell then. हाँ, बहुत कम लोग थे नहीं, लेकिन अभी 25 साल हो गया ना. अभी आई मेट so many people, I worked in so many areas. Film industry only one camera is doing the animation. Stop block is Mitchell. Michel, correct, Michel. No, it is a part of हाँ, animation हाँ. because Michel, they should know Michel cameras. There are like Fuji, Michel. There are very less cameras available that time to use the stop they should motion. know what, because we are all filmmakers, so they should know what type of stop block they use. हाँ, हाँ, हाँ. Everybody have questions also not limited time. There are some of the animation students who are here. So on behalf of Have them, time till one. there are, most of the students are eager to how to approach an animation companies after completing their college. So Sorry, repeat. there are some of the animation students over here. So on behalf of them, I just want to know that how they want to know how they are going to approach the animation companies after completing their course. Whatever, once you complete your course now, while you are completing the course, make any visual work, because rather than certificates, grades, we check your work. आपने क्या किया? आपने 30 सेकंड का कुछ एनिमेशन बनाया, 1 मिनट का एनिमेशन बनाया, that's enough. That has to be quality animation. 2 मिनट का, don't go for 5 minutes, 6 minute animation work और कुछ भी आपका जो भी शोरील आपका शो करेगा. जो भी आपको फाइनलाइजेशन करना है, जो भी इंडस्ट्री में जाना है, जो भी एज एन एनिमेटर करना है, तो एनिमेशन का अगर आप कुछ काम दिखाओगे, भले 6 सेकंड दिखाओ, 7 सेकंड का एनिमेशन दिखाओ, लेकिन उसका प्रिसीजन लेवल, उसका क्वालिटी इतना अच्छा होना चाहिए ना, तो दैट शोज दैट बिकॉज ऑफ दैट ओनली यू आर गोइंग टू गेट वर्क और एम्प्लॉयमेंट. 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसके लिए मैं ना बोलता हूँ, बिकॉज जिनके पास में वो इतना देखने का टाइम है, उनके पास काम कभी मत करो, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं रहता है. जो एंगेज कंप्लीटली है ना, तो प्रिसीजन लेवल, क्वालिटी और आपका एक थॉट प्रोसेस, बिकॉज उसके बाद में एनिमेशन हैज़ अ ह्यूज स्कोप. मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर आपको बहुत ट्रेनिंग है. आप यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ कंप्लीट 100% इन द एजुकेशन, बिकॉज एनिमेशन इज द प्रोसेस यू विल लर्न ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस. एक आज जो सोच है मुझे, वो एकदम से मैं 2000 में नहीं आई थी कि मैं कुछ देखा मैंने और मेरे से कुछ एक आइडिएशन शुरू हो गया. देखता रहा इंटरनेशनल, वो उन लोग ने कैसे, अभी नॉडी करके जो हमने सीरीज़ बनाई थी, तो 2 साल उन्होंने सिर्फ प्री प्रोडक्शन किए थे. 2 साल सिर्फ वो लोग सोच रहे थे, राइटिंग कर रहे थे. अपने यहाँ पे तो इंडिया में फिल्में बनती है, जनवरी में उन लोग फिल्म सोचते हैं और मार्च में वो लोग रिलीज़ करते हैं, और मार्च एंड में वो लोग डब्बे में डाल देते हैं उसको. दैट्स अ फैक्ट, बिकॉज प्री प्रोडक्शन, प्री विजुअलाइजेशन, मेन फाउंडेशन क्या पसंद है, उसके ऊपर कुछ वर्किंग नहीं होता. दैट्स व्हाई नॉडीज आर लाइक सीरीज आर वेरी, हमने ऑलमोस्ट जितना टाइम हमने शोले में डाला उतना ही हमने मोटू पतलू का रिसर्च में. वो तो मोटू पतलू का रिसर्च तो एनीवेज बाय डिफॉल्ट ही हम लोग को डिले हो गया, बिकॉज नोबडी वाज बाइंग दैट प्रॉपर्टी. लोग बोल रहे थे यार छोटा भीम चल रहा है, छोटा भीम बनाओ, तुम मोटू पतलू क्यों बना रहे हो. सो दीज आर द हर्डल्स. अभी तो
अभी तो हम लोग जो डिसाइड करते हैं वो लोग बाय करते और ले भी लेते, बिकॉज नाउ वी आर टेस्टेड, अभी हम लोग तो हो गए, प्रूव हो गए, और प्रूव करने का जरूरत नहीं है। With AI and new technologies emerging, how do you see the future of animation evolving? AI is a lottery for the students, I am telling you। AI को जितना सीख सकते हो, जितना है ना, इट्स लाइक आपको मैं बोलता हूँ, मैं बहुत टाइम पे ना, मुझे मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, बच्चे लोग डरे हुए हैं कि AI में से हमने जॉब नहीं मिलेंगे। पागल हो तुम लोग, को तो लॉटरी लगा है तुम्हारे हाथ में। तो यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम सिंपल वे में समझा देता हूँ। जब ये पेपर पे लोग पेंटिंग करते थे, और जब ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ 90s में, तो कंप्यूटर ने पेंटर के जॉब नहीं खाए। उल्टा अगर मुझे एक पेंटिंग करने के लिए 25 दिन लगते थे, कंप्यूटर के वजह से मैं 15 दिन में कर पाया, बिकॉज मैं वो मेरे पेपर मेरा सेविंग हो गया, कॉस्ट सेविंग हो गया, और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। मैं एक 25 दिन या मुझे 10 दिन में, तो मैं 25 दिन में 2 पेंटिंग करने लगा। तो मुझे उल्टा टेक इट एज अ टूल, नॉट अ टेक्नोलॉजी। AI इज नॉट अ टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन नॉट बी टेकन ओवर ह्यूमन इंटेलिजेंस। Human intelligence will be always far more ahead, 10 years ahead from AI, because AI needs the database, combination permutation of the images created by us, जो आपने Facebook पे सब रील भेज के या इंस्टा में रील भेज के, जो वो वही डेटाबेस से वो AI आपको कुछ दे देता है। AI is nothing, it is still under learning process। AI अभी भी लर्निंग प्रोसेस में। मेरा पिछले 2 साल में AI को मैंने ये करके उसको निचोड़ के फेंक दिया है। AI इज नथिंग, नहीं कर सकता। मुझे जो प्रिसीजन लेवल चाहिए वो नहीं आ रही है, बिकॉज वो खुद ही अभी तक पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेबी है अभी। सो इट विल टेक 5-10 years टाइम तब तक, और तब तक तो हम लोग तो और भी आगे निकल गए रहेंगे। सो AI यूज इट एज अ टूल, लर्न। तुम लोग जितना है, बेस्ट पार्ट हो गया, जो पहले 6 सेकंड ही निकलता था एनिमेशन में, अभी AI टूल करके यूज करो और तुम लोग 2-2 मिनट का एनिमेशन कर सकते हो। दैट मीन्स आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, आपका स्किल सेट अपडेट हो गया। आप पहले सिर्फ 6 सेकंड डिलीवर कर पाते थे, तो आप अगर AI सीखे हुए हैं तो आप 2 मिनट डिलीवर कर पाओगे, तो आपको लोग खरीदेंगे इमीडिएटली। अरे यार ये AI जानता है, अच्छा टूल सेट, और ज़्यादा एनिमेशन कर सकते हैं, इसको लो। तो उल्टा जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़। अच्छा मज़ा देखो, आप 6 सेकंड के बदले 2 मिनट बना रहे, तो आप प्रोडक्टिव हो गए। तो अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेकर कि और ज़्यादा सोचो, और ज़्यादा आइडियाज़ बनाओ ना। तो मैं अभी 10 ही IP में सीमित हो गया। तो अगर आप लोग अगर मुझे वो एक IP पूरा बना के दे देते हो, बिकॉज ऑफ द टूल, फास्ट हो गया मेरा काम। तो मैं जो पहले 1 साल लगता था एक सीरीज बनाने के लिए, हमें मोटू पतलू के एनिमेशन के जो एपिसोड 56 एपिसोड बनाने के लिए हमको 1 साल लगा था, अभी वो फैक्ट्री बन गया, अभी 1 महीने में ही वो सब बन जाता है। बट दैट टेक्स टाइम। तो AI को यूज़ करो और फास्ट प्रोडक्टिव हो जाओ। जैसे पेंटर ने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया, फिर उसके बाद में तो उनको हमने वैक्यूम दे दिया, टैबलेट पेन, तो और भी ज़्यादा पेंटिंग करने लगे। तो वो वैक्यूम आने की वजह से कि कोई पेंटर मर नहीं गया, उल्टा प्रोडक्टिव हो गया। तो AI को प्रोडक्टिव करके ले लो। बहुत सारे टूल्स है, यानी AI में कभी भी आपको एक टूल से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, दूसरा इससे एक रिजल्ट लेके आओ, फिर उसको दूसरे टूल में लेके जाओ, फास्ट करो, फाइन ट्यूनिंग करो, गो अहेड, ऐसा है। हाँ वही हो गया ना, म्यूजिकल एस्थेटिक सेंस भी आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस। आपको बिट्स का नॉलेज, आपको क्लासिकल का नॉलेज, एवरीथिंग मैटर्स, बिकॉज ये पेस है। आपको कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे फास्ट होना है, म्यूजिक का भी नॉलेज होना। मेरा फिल्म स्कूल बैकग्राउंड ही है, तो इसकी वजह से मुझे पता था। बट अब हमारे टाइम पे तो सिखाने वाले भी अच्छे थे हमें। लाइक फॉर दमन सूद फॉर साउंड इंजीनियरिंग थे, कार्तिक के तलरेजा क्लासिकल, 8 बीट क्या होता है, 4 बीट क्या होता है। आपको अगर एक्चुअल म्यूजिक सीखना है अच्छे से, एस्थेटिक सेंस अगर एक्चुअल सीखना है, तो गो टू समुंदर के बीच पे जाओ और वो जो लहरें आती हैं ना उनको सुनो। हर साथ के बाद में सप्त सुर क्या होते हैं, सप्त रंग क्या होते हैं, यू विल गेट अन साइंस। इट्स अ साइंस। म्यूजिक इज नॉट अ म्यूजिक, इट्स अ साइंस। हर 7 लहरों के बाद में एक लास्ट 8वीं लेयर आती है। रीड इट, आपको सुनाई देगी।
और वही है अपना बॉडी, और वो वैसे ही एक बेसिकली इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ द म्यूजिक का उल्टा एक्चुअल बेस आपको वो सीखना है ना, तो दिस काइंड ऑफ लोग जाते हैं वहाँ पे ओम क्यों बोलते हैं और वो सब क्या रहता है, दैट्स अ कंप्लीट म्यूजिक इज, और वो सब हमने किया सीखा, उस चीज़ की वजह से हम लोग उल्टा ज़्यादा इसको, बिकॉज ये सब वही ना प्री प्रोडक्शन और सब इसमें ये आ जाता है। एज अ फिल्म मेकर मैंने तो सीरीज बना दी, लेकिन उसको म्यूजिक क्या होना चाहिए, उसका ये क्या होना चाहिए। नहीं, हमें हमारे पास में नौकरी नहीं थी, यानी जॉब था लेकिन सैलरी नहीं थी, तो हमने देखा कि कॉमिक बुक पढ़ा है एंड वी क्रिएटेड एन आईपी, बिकॉज इतने साल में सी कैसा था तभी, इट्स लाइक परिस्थिति के वजह से हमने वो बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि काम नहीं था, क्योंकि हम लोग कम लोग 7 से 8 लोग 10 लोग ही बचे थे जब भी हमने ये कॉमिक बुक से वो स्टार्ट कर दिया उसको थिंकिंग, फिर उसके बाद में और 20 लोगों को हायर किया, फिर और टीम हायर करते गए, आज की तारीख में वो 1300 लोगों का टीम है। भले आई लेफ्ट इन 2016, बट अभी तो वो फैक्ट्री अभी चल रहा है, वो वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं। मोटू पतलू इज लाइक वंस द, बिकॉज रेसिपी है ना ये कि क्या होना चाहिए, हमने पैरामीटर सेट करके रखे हैं, कुछ भी करो। अभी थोड़ा सा एक डायरेक्टर चेंज हो गया तो वायलेंस थोड़ा सा आ गया, तो हम अभी आई एम नॉट वर्किंग फॉर देम, तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन है, बट दैट्स फाइन, क्या करेंगे। देखो हर एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव हो जाता है ना अलग अलग। पुराना वाला डायरेक्टर था, उसने एस्थेटिक को मेंटेन किया था कि वायलेंस कम रखो, बहुत ज़्यादा माराधाड़ी नहीं रखो, बट आजकल ये सेटमैक्स और साउथ का इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है, वो माराधाड़ी, बाप रे बाप क्या यानी ऐसे लगता है फ्रस्ट्रेशन निकालते, कॉर्पोरेट वाले बना रहे हैं ऐसे लग रहा है वो हर एक जन अपना बॉस देखता है क्या वहाँ पे। ट्रस्ट मी, आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे आईटी कंपनीज में उनके किचन जो भी ये रहता है कैफेटेरिया एरिया, वहाँ पे वो लोग उनके एलईडीज पे, उनके जो भी टेलीविजन ये है, वहाँ पे वो लोग टॉम एंड जेरी लूप में लगा के रखा हुआ रहता है। यू नो दैट? नो, बिकॉज टॉम एंड जेरी इज मोस्ट वायलेंट सीरीज, मोस्ट वायलेंस, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वायलेंस है। तो वो है ना आपका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कॉर्पोरेट में ना बहुत डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पे, हर एक दिन अपना बॉस को ही देखता है वो जेरी जो रहता है ना वो लाइक दैट, वो टॉम में अपना बॉस ही देखता है एंड दैट्स अ थेरेपी सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स। कार्टून को यानी वो एज को 30-35, वो जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया रहेगा उन्होंने सोचा रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट ऐसे भी काम में आ सकता है, 30-35 लोगों को, 40 लोगों को दिखाने के लिए। उन्होंने सोचा था बच्चों के लिए बनाएंगे ना, सोचो। इवन मे बी आई डोंट नो, हमने तो तभी सोचा था, अभी तो मे बी मोटू पतलू भी दिखाते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ गुड, शांत और सब। आई गॉट ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ मोटू पतलू। मैं पैसा तो पगार पैदा तो जितना मिला उतना ही मिला, बट ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की कि एक अच्छा कुछ बना है, दैट सेटिस्फैक्शन, यू फील हैप्पी गिवन समथिंग टू द सोसाइटी, बच्चे लोगों को। दैट्स अ कल्चरल इशूज। अभी इंडिया में एनिमेशन सक्सेसफुल और एनिमेटर्स क्यों है ना, मैं आई टेल यू, इट्स अ जियोग्राफिकल इशूज। एनिमी इज डन बाय वो चाइनीज, वो कल्चर उनका अलग है, अपना इंडियन कल्चर इज डिफरेंट। अगर आप लोग देखोगे ना तो हमारे टाइम से ना जो महाराष्ट्र आर्टिस्ट, कलकत्ता आर्टिस्ट, साउथ प्रोग्रामर्स, टेक्नीशियंस, ये इंडियन ज्योग्राफी और ये अपना महाराष्ट्र कल्चर, आपको पेंटर जे के, अमरावती के सब पेंटर, ये कल्चरल डिफरेंस है। आप अगर कोई लड़कियों की आंखें बड़ी और वो तो बंगाली समझ में आ जाता है कि ये बंगाली आर्टिस्ट है, कलकत्ता का है, बिकॉज वो उधर के कल्चरल वैल्यूज, राजस्थान के आर्टिस्ट, ज्योग्राफी की वजह से ना ये यहाँ से हमको पता है बेसिकली ये राजस्थान, तो वो कला, वो बैकग्राउंड डिजाइनिंग में वो लोग सुपर्ब रहेंगे। पैलेस वैलेस बनाना है तो राजस्थानी लोगों से बनवाओ, मॉडलर, तो वो उनके खून में है ना वो, तो वहाँ का कल्चर ही अलग है, तो वो उनका फाइट और एनिमी, और वो लोग क्या अभी हमारे चैनल्स के पास में कुछ कंटेंट नहीं तो वही उसको हैमर करते हैं और बोलते हैं कि नहीं बच्चों को एनिमी पसंद है। अरे तुम दूसरा कुछ दिखाते हो नहीं हो,
और बोलते हो कि एनिमी पसंद है। अरे तुम दूसरा कुछ दिखाओ तो सही या बनाओ तो सही। तो दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पैसा देता। मैं अगर एनिमी बनाने के लिए तो मेरे को लोग पैसे देंगे, बट मैं अभी मेरे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, बट कोई पैसा नहीं, इन्वेस्टर है, ये चले आ गया। आई एम मेकिंग श्रीमद् भगवद गीता इन 3D एनिमेशन, अभी एक मई में लॉन्च करूंगा, बट आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट द मनी। मुझे बताया भगवद गीता कौन देखेगा? सुना, सुप्रीम कोर्ट में वो बुक है जिसके ऊपर हाथ रख के आपका द ओनली और तुम्हारी औकात क्या है भगवद गीता को ये बोलने की, ये सेंटेंस यूज करने की? सो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करूंगा और आई विल गिव इट टू द सोसाइटी। तो यू आर द फर्स्ट पर्सन कि मोटू पतलू मुझे देखने का पसंद नहीं आता, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं। तो मैं आई कैन डू फॉर समथिंग, बच्चों को पसंद आ गया। मैं वही है ना कि हम लोग के पास में वो टाइम पे बजट नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था, हम हमारे खुद के पैसे लगा के हमने वो सब बनाया। तो हमारा जितना बजट था, आज अगर एक इंटरनेशनल कुंफू पांडा के लिए वो लोग 10 लाख रुपए पर मिनट के लिए देते हैं, हमारे मोटू पतलू के लिए 1 लाख रुपए देते हैं। और ये मेंटालिटी है हमारे इन्वेस्टर को, पता नहीं हमारे इन्वेस्टर्स सलमान खान के पिक्चर को 100 करोड़ दे देंगे, लेकिन एक कार्टून चैनल बनाने के लिए, कार्टून सीरीज बनाने के लिए कोई देंगे नहीं। So that's a mentality issues. Investment, we don't have a investment कि हम कुछ बनाए, हमें कोई ये नहीं। अच्छा, we are also, मैं अभी ये निकालता हूँ, we are also coming under IT section, we are IT कंपनी, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी बना रहे हैं। एजुकेशन बहुत कम है एनिमेशन के लिए लोगों को। आज पता चला ना, आप लोगों को पता चला साइंस, कोई पहले तो 2010 और 8 थी कि अरे कुछ नहीं कर रहा है ना यार, तो तेरा साइंस में कुछ नहीं होगा, आर्ट्स में या इसमें कॉमर्स में कुछ नहीं होगा ना, तू एक काम कर एनिमेशन कर। दैट वाज द अप्रोच अर्लियर, दैट वाज सैड। हम बोल रहे थे अरे साइंस बेस्ट, इंजीनियर। आज टाइटैनिक देखा आपने बनाया हुआ, इफ यू सी द मेकिंग, आर्किटेक्ट्स थे वहां पे, इंजीनियर्स। फिल्मों में हमारे यहाँ प्रोडक्शन डिजाइनर रहता है, आर्ट डायरेक्टर। कौन जाएगा आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट बोलेगा मैं बिल्डिंग बनाऊंगा ना, मैं ये कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा ना, मैं फिल्मों में क्यों जाऊंगा? ये नॉलेज ही नहीं है। मैं मेरे पास में एक प्रोड्यूसर ने, यूएस का प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया, तो ही सेड व्हाट ही सेड, उसको एक इंटरनेशनल एरा का आईपी बनाना था। उसने बोला 250 करोड़ का मंथ बजट है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट कौन होगा पता है क्या? अपना कंपनी का। यू विल अमेज्ड, क्योंकि घोड़ों का मूवी है, पूरे घोड़े रहेंगे, एरा का मूवी है। तो उसने बोला पहला हायरिंग होगा डॉक्टर्स का, वेटरनरी डॉक्टर्स होगा। कौन सोचता है फिल्म प्रोड्यूसर अपने यहाँ पे कि पहले डॉक्टर को हायर करेंगे ताकि जो बाकी का स्टाफ है उनको ये मेडिकल हेल्पर। दिस आर यूएस मेंटालिटी प्रोड्यूसर है, और इसके लिए उनकी मूवीज भी अच्छी बनती है और 4 साल उन लोग ये करते हैं। दैट्स ये डिफरेंस है। इंडियन प्रोड्यूसर तो पिछला वो लास्ट वाला डिपार्टमेंट के पास में 50 पैसा नहीं रहता है इनके पास में। गरीब लोग हैं। और अगेन आई एम सेइंग कि आपका जो क्वेश्चन था ना कि आई नेवर थॉट अबाउट दी ये जनरेशन कि तुमको क्या पसंद आएगा और मैं क्या बनाऊं। मेरा हमेशा रहता है कि वो बच्चे को क्या पसंद आएगा। वो रेंगता हुआ बच्चा, वो बोल नहीं पाता, उसको मैं क्या फॉर्म्स दिखा सकता हूँ, क्या कलर्स दिखा सकता हूँ। बिकॉज मुझे वो रिसर्च नहीं मिलने वाला है कहीं भी, गूगल में भी वो नहीं बताने वाला कि मुझे क्या चाहिए। हम लोग उनको वही ऑब्जर्व करते कि कोई देखता है ना तो बच्चा कहाँ पे कुछ स्क्रॉल कर रहा है। मेरी दोस्त की बेटी, आई एम नॉट मैरिड बट एटलीस्ट मुझे पता है कि बच्चे के हम लोग जब भी रिसर्च करते तो हाँ अच्छा इसको ये पसंद है, यही दिख रही है। अच्छा वो कोको मेलन आ रहा है तो कोको मेलन का एक खाली वो आ गया तो समझ में आ गया, फिर वो एंगेज हो गया। दैट मीन्स फिर वो हम लोग रिसर्च करते हैं कि क्या पसंद है, क्यों आया। जो बात करने वाला मैं, आई एम नॉट हियर टू सेटिस्फाई यू सर, आई एम हियर टू सेटिस्फाई दैट किड बेचारा। उसको कुछ एजुकेशनल, उसको कुछ अच्छा सॉफ्ट कुछ ये देते।
क्योंकि आपके लिए सब वो बड़े फिल्म मेकर, वो सलमान खान के लोग और वो सब लोग हैं कि आपको कुछ क्या पसंद आएगा। आप बताओगे ना कि मुझे मेरे लिए ये ऐसी फिल्म बनाओ, मुझे रोमांसिक बनाओ, यशराज बनाओ, ये बनाओ, बालाजी बनाओ। सब अभी बच्चों के साथ काम करना है, मतलब बच्चों के लिए काम करना है, तो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज से। तो आपने वॉयलेंस और ये सारी चीज़ें तो कम कर दी, लेकिन जो अटेंशन स्पैम है एनिमेशन का, तो उसके बारे में भी आप सोचते हो क्या? और Obviously. तो किस तरीके से सोचते हो? ऑब्वियसली कि अगर कुछ वायलेंस अगर उसमें रखना भी, एक्यूट वायलेंस रखना है, माराधाड़ी भी रखना है, तो उसका टाइम स्पैन कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। वो सब सोचना पड़ता है, ईच एंड एवरी चीज़ है। नहीं, लेकिन उनका अटेंशन, बच्चों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए शॉर्ट्स हम लोग जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, या फिर म्यूजिक बीजीएम का और हैमर करते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से उनके ब्रेन पे कुछ फर्क पड़ता है क्या बच्चों को? ऑब्वियसली ना, आज के तारीख में अगर तुम आप देखोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज हैव स्टार्टेड बिकॉज अग्रेसिव, बच्चे लोग अग्रेसिव होने लगे। और वो है प्रॉब्लम है, अभी मेजर होने लगा है, ऑटिस्टिक और जैसे वो सब ये आ गए। डिजिटल डिटॉक्स नहीं है बच्चे लोगों को आज बहुत ही, आज एनिमेशन का कंटेंट इज टू मच रिक्वायर्ड। आई एम टू लाइक क्राइंग कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और आजकल के तो हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग आफ्टर पैंडेमिक, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। तो वो लोग बच्चे को टैब या कुछ मोबाइल दे देते हैं और छोड़ देते हैं, और बच्चा कुछ भी देख रहा है क्या। इट्स अ डिजास्टर, इट्स अ वेरी बैड वॉर हो रहा है अभी। मैं क्या करूँ ना, आई एम नॉट लाइक फ्रॉम द नवाब फैमिली कि भाई मेरे पास में बहुत पैसा, बिकॉज एनिमेशन कंटेंट डेवलपमेंट इज अ एक्सपेंसिव टास्क। वो ऐसे नहीं कि फटाफट बन गए, इसके लिए तो उल्टा अच्छा हो गया ना, एआई आ गया तो मैं थोड़ा सा बड़ा फटाफट बना रहा हूँ और वो सब आई एम डूइंग इट बिकॉज सेम कल्चर उन्होंने अडॉप्ट किया यूएस का ना, कि कितना होना चाहिए प्री प्रोडक्शन के लिए, प्री विजुअलाइजेशन के लिए कितना ये होना चाहिए। दे इन्वेस्टेड, दीज आर द कंट्रीज लाइक हु इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजीज। हमारे यहाँ पे तो मेजर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि एनिमेटर को कौन सी अच्छी मशीन चाहिए, क्या चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर अहेड। What are the most What are the most common mistakes beginners make while learning animation? नो प्रैक्टिस? क्योंकि आप तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स और वो सब सीखोगे, वो प्रैक्टिस जब तक नहीं आएगा आपको। सारे टूल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाइक या इसका ये दे दूँ, बाइक है, मुझे टूल बॉक्स भी रखा है कि इधर टूल बॉक्स रखा है, लेकिन वो टूल बॉक्स कहाँ पे काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, वो जब तक मुझे पता नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब तक मुझे नहीं पता जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यू हैव टू स्टिल डूइंग प्रैक्टिस, वॉचिंग, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, सेल्फ रिसर्च। वही हैमलेस में जाके मैं अभी भी आई एम लर्निंग। मैं अभी भी मशीन पे बैठता हूँ, काम करता हूँ कंप्यूटर पे, मैं छोड़ा नहीं हूँ। 25 साल हो गया तो मैं मैनेजमेंट में हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी जाता हूँ, हैमलेस में जाता हूँ, स्टडी करता हूँ, बच्चों को क्या चाहिए देखता हूँ, कौन से फॉर्म्स अच्छे लग रहे हैं, क्या क्या आया है नया। वो स्टडी रिसर्च चालू रहता है आपका। प्रैक्टिस, मैं अभी भी खुद शॉर्ट्स बनाता हूँ, 2D एनिमेशन हो, सेल एनिमेशन हो, 3D एनिमेशन हो, अनरियल इंजन, गेमिंग हो, वी यूज़ इट। सॉफ्टवेयर हमारे लिए कोई भी नया सॉफ्टवेयर आ जाता है तो एक से 2 दिन लगता है हम लोग के लिए, तो बिकॉज इंटरफेस तो सेफ है। सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट पार्ट है ये जो सॉफ्टवेयर्स बने ना, वो आर्टिस्ट लोगों के लिए बने। तो आप अगर देखोगे ना तो लैंग्वेज बहुत सिंपल है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर दी एक्सपर्ट्स ना, इट इज़ मेंट फॉर आर्टिस्ट जो जे के है, फाइन आर्ट के, अमरावती के है। आज वो लोग हाई एंड सॉफ्टवेयर, बिकॉज फाइल, न्यू, एडिट, टूल, लैसो टूल, सिंपल लैंग्वेज ही यूज रखा है उसके अंदर। कोई बिकॉज नहीं रख सकते, बिकॉज उनको भी पता है जो डेवलप कर रही है कंपनीज, तो इसको सिंप्लीफाई रखना है ताकि वो आर्टिस्ट अच्छे से इस्तेमाल कर सके, प्रैक्टिस कर पाएगा वो। सारे सवाल खत्म।
हाँ, How much time it takes to make one episode of डिपेंड्स ऑन द, ये सबसे ये है कि आप स्टाइल क्या डे वन पे स्टाइल क्या डिसाइड करते हो। लाइव एक्शन फिल्म के लिए ना आपको उतना ही है कि आपको शूटिंग के लिए कितने दिन लगेंगे, आपको पता है कितने लोग हैं और क्या। बट एनिमेशन इज द बेस्ट पार्ट क्या है कि आप स्टाइल क्या डिजाइन करते हो। अगर 2D का है वो 10 दिन में हो सकता है, 3D का है मोटू पतलू जैसा है उसको 25 दिन लग सकते हैं, कुंफू पांडा ड्रीमवर्क्स जैसा है उसको 2 महीना लग सकता है, मैं अनरियल गेमिंग में कर रहा हूँ तो मेरा तो हर एक स्टाइल जो डिसाइड करोगे ना, और वो स्टाइल कैसे डिसाइड करोगे कि वो कंटेंट को क्या स्टाइल चाहिए। अगर मैं कुकरी शो बना रहा हूँ अभी तो मैं फॉर एग्जांपल मुझे जल्दी बनाना है तो मैं काम करूंगा ना, मैं लाइव एक्शन कैरेक्टर ले लूंगा, कोई एक सेलिब्रिटी ले लूंगा और जो मुर्गी है उसको 2D में ले लूंगा ताकि वो किचन में जब ये करे तो इधर से उधर जा रही है, कूद रही है, तो सब बर्तन ही हो रहे, धाड़ धूड़ सब मारा, तो मैंने अरे बाप रे सीखा भी रही लेकिन इसने किचन का पूरी वाट लगा के रखी है। तो मैं वो स्टाइल अगर ये करता हूँ तो मेरा फास्ट काम होएगा, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो टाइम कितना लगेगा। और वो सब एज ए डायरेक्टर आई शुड नो कि कितने फॉर्मेट्स होते हैं जो मुझे मैं फास्ट काम कर सकता हूँ और मैं बराबर एपिसोड बना सकता हूँ। ये स्टाइल डिफाइन करते हैं कि आपको एक एपिसोड को कितना टाइम लगेगा। और स्टाइल उसके लिए आपको हर एक स्टाइल पता होना चाहिए, यानी कितनी अनगिनत स्टाइल है। इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन कि 2 स्टाइल को मिक्स कर दो, 2D को लाइव एक्शन को मिक्स कर दो या 3D को लाइव एक्शन को मिक्स कर दो, या सिर्फ 3D रखो या अनरियल बनाओ। अभी भगवत गीता बना रहा हूँ तो मैं अनरियल इंजन यानी जो गेमिंग इंजन, रियलिस्टिक कैरेक्टर, नो लोगों को लगता है कार्टून, नो कार्टून नहीं दिखेगा, एकदम रियल कैरेक्टर दिखेगा, रियल एनिमेशन होगा, और जो मैं फटाफट बना रहा हूँ बिकॉज माई एक्सपीरियंस मैं वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। तो ऑल अभी वो 250 मिनट 249 मिनट्स की भगवत गीता है, 18 अध्याय है। सो अगर मैं ट्रेडिशनल वे में चले जाऊं तो मुझे 2 साल लगेंगे, बट मैं 3 महीने में बना रहा हूँ। सर आप बजट का बोले तो ये जो रिसेंटली रामायण मूवी आई थी उसके जो CGI वो थे उसको बहुत ही बुरा बोला लोगों ने, तो उसका क्या है? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहें बनाने के टाइम पे बनाते देखो कैसा होता ना, इट्स लाइक मैं क्रिटिक्स को या रिव्यूज़ वालों को नहीं मैं मानता, बिकॉज एक मूवी बनाने के लिए उसका थॉट प्रोसेस के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी लोगों की मेहनत है, कितने लोगों का फैमिलीज है, वो एवरीथिंग काउंट्स। कितने दिन भर लाइव एक्शन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, धूप में खड़े रह के लाइट पकड़ के ये सब मेहनत करने के बाद में आप थिएटर में जाओगे और कोई एक तरह आदर्श बोल देगा कि अरे यार बहुत बकवास मूवी था, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट। तो मैं तो कभी रिव्यूज़ देख के ये देख के नहीं, मैं जाके मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि वो फिल्म मेकर ने कैसे बनाया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, और दैट्स माई थॉट, माई पर्सपेक्टिव। कुछ लोग कुछ मूवी अच्छी लगती है, आपका पर्सनल ओपिनियन पूछा। मैं मेरा पर्सनली मैं कभी मैं ये इन लोग के ऊपर नहीं सोचता हूँ। मुझे पता नहीं कि वो 1200 करोड़ लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद में मैं बना रहा हूँ रामायण ही। तो मुझे सी दे आर ऑल्सो ट्राइंग, वो लोग फिगर आउट कर रहे हैं, लोगों ने पसंद किया नहीं पसंद किया, अगर उस सोच के ही मैं अगर नहीं बनाऊँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दे नो कि बस रामायण एक सब्जेक्ट है जो है माइथोलॉजी, लोगों को पता है तो दे विल एक्सेप्ट। रामायण हजारों लोगों ने बनाए हुए, वैसे रहता हनुमान, महाभारत, दीज आर लाइक टाइमली टेस्टेड सब्जेक्ट बिकॉज एटलीस्ट दीज आर बेटर देन दिस एनिमी ऑफ वायलेंस, ब्लड वायलेंस। तो वो टाइमली टेस्टेड है, कैसे भी बने, चलो उसमें मिस्टेक हो जाए लेकिन इट विल बी अप्रिशिएटेड। सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेशन हैज अ शेल्फ लाइफ। आज उसने बनाया, चलो 1200 करोड़ में बनाया, भले आपको पता है शोले जब भी 1970 में बनाया था उसका बजट क्या था, 1 करोड़। 1970 और 2025 वो टाइम का 1 करोड़ आज का कितना रहेगा सोचो, 1200 करोड़ ही रहेगा, किया ना। लेकिन आज वो 1 करोड़ तो वो टाइम पे उनके डैड ने किए थे, आज दे आर अर्निंग लाइक मोर देन 20-25 करोड़। तो रामायण तो 40 साल के बाद में नहीं कोई देखेगा, देखेंगे, इट्स आर हिस्ट्री। रामायण महाभारत इज द हिस्ट्री, इट्स नॉट अ माइथोलॉजी, जिसके प्रूफ्स है साइंटिफिकल, उसको फिर उसको इलेबोरेट करते जाओ, फिर उसको सीरीज में कर सकते हो। द ओनली थिंग इज है ना, आपका राइटिंग और ये जो आइडिएशन विजुअलाइजेशन है ना, सोचो कि इसको आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ सासबो की सीरियल कि इसमें हो गया खत्म, सीजन 1 खत्म,
सबमिट मत करो, लिख के रखो. वंस यू फील कि बस हाँ यू नो द इंडस्ट्री, वो पूरे कितने डिपार्टमेंट्स क्या बना सकते हैं, क्या स्टाइल हो सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे बना सकते हैं उसको, तो तभी उसको एलैबोरेट कर पाओगे. तो ये आपका आइडिया है, रजिस्टर करके रखो आपको, जस्ट जनरली इट्स एन आइडिया, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल हैज दिस काइंड ऑफ, एक्चुअली एवरीवन हैज दैट कैपेसिटी बट नोबडी ट्राइज. लिखने की कैपेसिटी और ये सब भी यानी सभी की रहते हैं. सबसे बेस्ट बोलो ना कि आपकी मॉम जो आज खाना बनाती है, तो शी नोज द रेसिपी ना, उन्होंने लिखी है क्या कभी, बट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस इट कम्स. तो एवरीवन इज अ गुड कुक. आप हर एक चीज, द ओनली थिंग इज द स्टोरी एलिब्रेशन. खुद को सीमित मत रखो कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, कर सकते, एवरीवन कैन डू इट. और फिर आ जाएगा एक्सपीरियंस, आ जाएगा 5 साल 10 साल के बाद में थोड़ा सा फाइनेंस भी जमा करके रखोगे, देन यू मे बी यू कैन स्टार्ट एलैबोरेटिंग, यू कैन स्टार्ट मेकिंग, डेवलपिंग. तभी एक्सपोज भी हो जाओगे कितने कितने मीडियम्स होते हैं, ये वाला तो इसमें कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. दैट कम्स लाइक दैट. मैं वही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ जो पहले था कि वो पॉइंटर्स, तो कंप्यूटर या कैमरा उसको रीड करता था मोशन को, और वो एक एनिमेशन डेटा देता था. तो आपका जो मॉडल है अंदर माया में जो मॉडल है उसको वो डेटा अप्लाई कर दिया एंड दैट डू द एनिमेशन. तो वैसे अगर आप देखा जाओगे ना, तो अभी नए नए टूल्स भी आ गए हैं. सो फॉर एग्जांपल ये है मेरे ख्याल से एक ये है ना, अभी AI टूल निकला है नया डीप मोशन का. रिकॉर्ड मत करना, बट मैं ये अभी पहले के ज़माने में था कि वो सब ये लगा के, तो मुझे एनिमेशन करना था, मोशन कैप्चर करना था. मोशन कैप्चर इज एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव. तो मैंने पूछा एक जगह पे कि कितना आएगा, तो दे सेड लाइक 3 लाख रुपया पर डे का वो सूट है और सब. हम लोग बोला ओके, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. तो फिर गरीब लोग हम बट टेक्नीशियन, हमको कोई चैलेंज करता है लेकिन बनाना तो है. रिसर्च किया, थोड़ा ये कर दिया. फिर मैंने अमेजोन से लेडीज स्विम सूट मंगाया 300 रुपये का पहना, और वो अब ये कैरेक्टर को दिया. नाउ ही इज अडॉप्टिंग माय एनिमेशन. सही है ना? दिस इज AI. फिर मैंने उनको बोला आप 3 लाख रुपए ना आप वो म्यूजियम में रख दो. सो ये है मोशन कैप्चर. अभी नाउ ये भी आपका आ गया है AI टूल्स. जो लॉटरी है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लॉटरी है. लॉटरी क्यों? कि मोशन कैप्चर आप तो हम लोग को एक्टिंग भी आता है, इवन आना एनिमेटर आपको एक्टिंग भी आना चाहिए एक्चुअली, ताकि आप ये कर सको. फिर मैं तो अभी ये क्रैक कर लिया, अभी तो मुझे पता चला. अभी मैं एनिमेशन इसके लिए मैं फटाफट कर दूंगा, मैं एक्चुअल इनएक्ट कर दूंगा और मैं उसको लेके एनिमेशन में वो डेटा लेके, ये मोशन कैप्चर डेटा है, दे दिया. वो मैनिक्विन, वो फीमेल मैनिक्विन, उसको दे दिया. वो कैरेक्टर का डेटा ले लिया, मेरे एक्चुअल मॉडलर को दे दिया, और मेरा एनिमेशन रेडी. Cinefest and Tilak Maharashtra Vidyapith, I extend our sincere thanks to Hemant Sindeshwar, sir, for sharing his knowledge, experience and creative insights with us today. Sir, your session helped us understand animation not just as a technical skill but as an expressive art form that has endless possibilities. Thank you all for making this session meaningful and engaging.